At Player One Coffee, we're obsessed with gaming, coffee, and, well, gaming. Every one of our signature roasts is handcrafted and tasty as. Get yours at playeronecoffee.com. Hey guys, what's up? Welcome to the podcast. This is my first podcast talking about the problems and issues in Pakistan all over gaming. As recently PUBG was banned and other stuff was happening, we're gonna talk about this. We have on the side Psychopath. Welcome him. He's one of my friends, Hello. a great player for CS:GO. Not he's not a content creator, but coming soon in the content creator stream and stuff. He's a Yeah. really good player. You guys can check him out. His Steam profile link is in the description. Make sure you guys support him. So we got like several topics over here on our content creation and stuff. So the thing is that recently PUBG got banned in Pakistan just because over Yeah. some really lame excuses from PTA. It was saying Yeah. it just said the guy over there said that PUBG has like a really boiling Yeah. He graphics. was like he was saying like PUBG is having the mechanics and graphics that attract students. They play Last of Us, which are way more horror and end level mechanics. So, why they are saying that and Look, PUBG mechanics are yeah, like I got your point. They are relating is that when a person, when a kid plays the game for at least 2 to 3 hours, what he actually does that the sound of the guns, the wilding graphics, when you kill someone, when someone is dead, yeah, that yeah. actually destroys or move your mind, which actually is taking the children's towards suicide. Like it makes no sense, man. Maybe it can be distracting to towards I study. I have saw I have seen many posts like um having suicides, but 30% of the suicides in the world or in Pakistan are happening over studies. Studies and job Seriously. rejections, to be really honest. Yeah, Um, if you talk about a certain game, look, a game is created for fun, for stress relieving, or someone's passion. yeah. But if you talk Like about it's something, it's made it's made for like what's a student life? Going on going for school uh from 8 to 2, then rather sleeping for 2 hours or 3 hours, then coaching, then what life is going like it's so stressful. We need games to like rid over our distract our mind, frustration. cool down a Yeah, bit of. yeah, Okay, if you discuss a normal school life, as I'm also in school, Psychopath is also in school. Like every single guy, maybe who's watching this video, is in school. What do they do? You wake up early in the morning, you go to school, you take like almost 8 hours and 9 hours a day studying hard. Like it's just like you're understanding things in school. Then you come back home, you sleep. Some people don't sleep. They directly play games from school. Why do they do that? yeah, You have different problem in school. You get in a fight with friends, or you're just stressed from studies, or you had a really bad exam, or something is going on in your life or in your mind, which actually is making look, problems in we your. have different types. We have different types of people. They have different types of mind. Some get bullied by the seniors, some get less marks in studies, and all is they have left is games to end those thoughts, those To get a fresh relief from that stressful. frustration. Yeah, Yeah, I got you. yeah, yeah, So what actually happens when they want to relieve from their stress and stuff? They play game, and some yeah. people play for fun. Some people play for skill. Some people play it for their passion. Some Yeah, Now the thing with your point is right. Some people want to make gaming their career in Pakistan. We have very good content creators in Pakistan of like PUBG, and we have content creators for CS:GO. We have many of the players of Dota. We have players for Tekken 7 as well. as well as we take up Arsenal and Ash, we're gonna talk about this in Yeah, a bit afterwards about the career and stuff. We're gonna bring it back yeah, yeah, later. But if you talk about PUBG right now, the banning, the purpose of PUBG is that the game is totally violent. If you talk about other games, for example, Left 4 Dead, yeah. Outlast, Last of Us, which recently released, if you talk about Battlefield, or if you talk about Batman and other games which are like story mode, if you talk, like take up Grand Theft Auto 5, man,
Grand Theft Auto 5, you kill someone, it shows a bullet in their head, it shows up like blood splashing out. It is also Yeah. violent, but nothing bad happens or nothing comes up of a person's mind. It doesn't take over. The problem is that some people like there are, I don't disagree with the decision of PTA that they are going towards suicide or something. That's rage in the mind of players. Most of us is like you play a game, you raise they bang on the table or they threw something or they just like scream out of Yeah, their mind. they rage a lot. They rage Like a lot, but yeah, not suicide. I've never seen someone suiciding, but just like almost 3 to 4 years ago in the past, I just heard this. I'm not sure if this is true or not, but this was something that a guy was playing Counter Strike. He got knifed by a person like 15 times in a row, and he went to his house and stabbed him in real life. But I don't know if it's true or not. But if you talk about this, like what happens in PUBG, well, I think if there's a problem with your child or there's a problem with you, and you think that the game is taking over yeah. your mind, Look, you should look. like It's adjust the seriously. thing If and if just the we time talk and stuff. about if we talk about suicide because of PUBG, we have different reasons. Yep. The reason is not PUBG. The reason is non-parental controls. Why you allow your child to play PUBG for 9 hours? You can take his mobile from like you can take his mobile in 1 hour as well. I'll give You you are the my parent. example. You I'll give you have my example. When you I are, started gaming, I was like a nerd for games. I started Counter Strike at first, so I almost played from like I woke up in the morning at 10 a.m. I played until 2 a.m. 2 a.m. like the night. I played like until then. I just took like hour or 30 yeah. minutes break after It's every like 3 or 4 hours. I it's just like did the same. Like the way we are yeah. playing the games now in quarantine, we have nothing to do. We're just bored. As we are gamers, we have a community. We have to do something. We have to build up our skills day by We have day. But actually my mom, we have we have a connection with our friends yeah, through gaming. We can communicate like I'm communicating to you through Discord. we are coming. We are talking. We are sharing our purposes, our POV, our point of Yeah, view yeah, to yeah. you But guys. actually, people can give our thoughts. Yep. Like they can not put the thing like like the depressed people do. They think that no one is there for you. But Yeah. in the Well, community, when we are in a community, mm, we used to talk to each other. mm, We take out our frustration, what we have in our heart, what we have in our mind. We used to talk to each other and do solve the problems. yep. Uh, if you talk about the PUBG ban thing, like the whole circle about the why did it took this decision, I think was the guy who took the decision, like from my point of view and from the others content creator, for example, the Kibai and other players, the content creator, sorry. I thought like the guy has literally 0% No, experience in no, gaming. no, Like no, he no. he doesn't even know what's Actually, going on. yes, yes. You're right. You're right. That guy is having zero IQ. He's saying that his mechanics, the mechanics of PUBG, what the hell? We know how is PUBG. PUBG is so much like if we I It's a have really bought a focused game. computer. It's a really focused game. Every battle royale It's a game or focus every game. It's 5v5 a focus. competitive Yeah, game, yeah. every competitive We game also is play. really focused. I'm not Yeah, even. I'm we not also playing play like Fortnite. if We you play also like play Super Fortnite. Mario or something. It's not like that. You're not focusing. We focus, but it's a fun game. We take it as fun. But PUBG, CS, Fortnite, and other games, you need like real focus. You're not trying to focus, but you get a focus. That means that you're like engaging in with the game and the moves, Look, and look. that The, doesn't the distract your thing mind. is, first of all, Google Play accounts. Seriously, Google Play says that PUBG is rated 16 plus, but I have seen PUBG. I have seen 7 year olds 5 year playing, old, yeah. 5 year old, 6 year old, 7 year old playing that game. Even my cousins, they're like almost 5 years or 4 years old. They're playing like PUBG, man. And Like, they yeah, know the exact call outs, where to go, where not to at go. the, I yeah, I would like to mention a at point here. our Over here, time. give me a second, bye. Look, I would like to at our mention a point time. over here that if a guy or if a kid is knowing the game, knowing the strategy of battle royale games, that means he's developing really great IQ in himself. If you Yeah, if you know how to use strategy in games, then maybe if any you point, put I hope you put nothing that happens strategy in on your, your life. yeah, you can Yeah, put you that put strategy that. on your life. Like I hope Yeah. nothing bad happens in all of us life. Allah keep us safe. But Listen of the one thing. Listen of one thing. If a person like he got a fight into his friends, now he got into a game of PUBG. He's playing in a squad.
then he get to know that if I don't keep the bond with my friends, I would be defeated by my enemies. Yeah, So teamwork. teamwork is He important. learns teamwork. He learns teamwork. Yep. He thinks about it, and he said, no, I have to say sorry to him, and I have to make the team back. Yep. Like, he learns teamwork. He learns teamwork, and he got to know that teamwork is the best thing. Sorry to interrupt you, but the thing over here with the PTA and all the stuff which is going on right now, Yeah, yeah. I would like to say Actually, that actually, PTA. If anyone yeah, from the government see next, I'm gonna tag PTA. I'm gonna tag Imran Khan as Dakibai said to tag all of them to finish this fuss. In the gaming yeah, yeah, community of Pakistan, there are a lot of topics which I'm gonna discuss right now in this video further. Um, that PTA, there are thousands of people who have made money out of this, great career out of this in Pakistan. You guys say that bring money, like bring dollars in this country. We are doing this, okay? We are supporting our country. You are yeah, banning the game. You should not ban the game. Maybe you should tell, like, you should try to communicate with the parents, with the elders, to let the children, like, let the player know to play the game in a limited time. Don't yeah. exceed the limit. You can put up timetable and stuff. I say this. I don't play They're the like, timetable. I no, don't play the. listen, Sorry, give me a listen at second. the excuse. I don't play this game with a timetable. Okay, I don't do with timetable. Whatever I Yeah, do is like going on until I'm not tired. Because I'm a yeah, content creator. I'm a small content creator. I know that. I just started. But whatever I have to do is like put time on it, bro. If you put time on it, you got skills, you got stuff, you got ideas in your mind. If you got something on the screen that what you can show to the community, that's what the community wants to see. I hope you got my point. If you like play the game, yeah, you yeah, put up hours, yeah, you got clips, you make video, you make montage, you post. Community say, "Oh my god, bro, yeah, this guy is telling. Let's watch him. Like, subscribe, man, share his video." That's how you make yeah, yeah, something, man. But if there is a kid who has a timetable who is stressed, he should only play 2 to 3 hours and take out his fuss and stuff. Maybe you should play 1 hour and 2 hours to songs or something else which can relieve his mind or take fresh air. Parents, you yeah, yeah, guys yeah. have to stop your children. I Not got your point. blaming the I got your game. point. It's a company making $1 billion out there who created the game. Are the Chinese, Koreans, and other Europeans just Yeah. like stupid man who created the games? No. Actually, we know, we know there are many un underground markets which will not allow us to earn money. But Yeah. by doing e-commerce in Pakistan, that's the best way to earn money. Yeah. E-commerce in Pakistan is the best way because there are no interference in e-commerce. But doing like banning games, we don't know what's the future. Yeah. Well, with the end of the PUBG Actually, topic, actually, actually, yeah. I want to conclude by ending this topic. PTA has not only banned PUBG Mobile, they have banned PUBG PC, like the they whole have PUBG, banned PUBG PUBG PC Lite, PUBG Lite. PC, PUBG like all the emulator. They have I don't play. ended the Yeah, franchise for I like just 9 July till 9 July.
Yeah, like I just before. wanted to say, I just wanted to say that if you have plenty of reasons. I know that you have banned PUBG Mobile. So mobile players are addictive. We know that. But why you are banning a game of Steam $30? It costs $30, man. Man, I'm just having Uh, like the main issues over here. The people who bought the Royal Pass and yeah, the game I just a year ago, and it got we banned. should say F in the chat for those people who Yeah, bought this like game. Yeah, man, who that's so bought this sad for game. them. Bet what if like my cousin is also playing these games. He bought the game from Steam on the Steam summer sale for $15. Okay, Yep. he bought that game. Then he launched that game, but the game was not working. Then he saw the news. Oh my God, PUBG got banned. Oh fuck! I feel sad for Like him. Also, before obviously, ending this topic for PUBG, I just want to say that I'm supporting the Kibai. I'm supporting all the content creators, everyone. I don't play PUBG. I'm saying this on stream. I don't play PUBG. I actually don't like PUBG because it's not with my mindset. But the thing is that yeah. I support PUBG. I support my Pakistan gaming community, especially. So Actually, we are PTA. not here. We are not here for supporting PUBG. We are here for supporting esports in Pakistan No, because esports I just gotta contain. mention that. I just gotta mention that we should support PUBG too in Pakistan. Like, Yeah, it's not over us if you're supporting or not. we It's like we are just saying we that don't like the game, man. We just don't like the game. it's not our sport. It's not our sport. We are players from CS:GO. We play Fortnite. We play other games. We don't play PUBG, but we are there for PUBG. Like it should not get banned. Yeah, The players who you play should other than us, PTA. The thing I would just like to say, just ending the topic, revoke ban from PUBG. I hope you review this video and never ban something which is not doing anything or you haven't researched on it completely. The guy yeah, who was speaking on the Airby News rather, channel about this, yeah, man, yeah, I just gotta tell you, man, you have zero knowledge about the gaming. Get a knowledge and then yeah. speak it. I'm just saying it because you're You destroying should a community. rather A look community rather builds a country, a city, a country. When the peoples PTA should, unite, it builds a yeah, country. You're breaking that. yeah, yeah. So please research on it P, and then speak on it. PTA should hire a gamer, a Yeah. streamer On who this has point, experience on yeah, this on this thing. point, I'm gonna tell you why they're not hiring. Let's talk about the next topic. Hey guys, okay. So the second topic we're talking about is who's taking actions over the problems which are going on right now on the PUBG things and stuff. I don't have enough knowledge about this. Like I have just a bit, but Psychopath over here has done some research, knows about it, who is taking actions over it or not. Um, from my side, I know a lot of content creators are taking action over this. The whole controversy going on PUBG and stuff. I just know about this, but I don't know about what is Vakar Zakar doing. We heard a lot of things on Twitter, things going on trending over there. I think some people are taking action on it. Psychopath, tell Yeah, us about what's going on here. yeah. So last night I was watching Wakar Zaka's YouTube channel. So he has posted many things. He has assigned a petition for Pakistanis to sign, and he has set up for the PUBG users what loss they are saying. Even though Wakar Zaka is saying that, do mention that how much money you have spent over PUBG, how much things you have bought for PUBG, how much things you have done for esports, what was your current earning through PUBG. Sign that and show it to the The Sindh government. High Court that Okay. what loss will you be having. Okay, so So he has done a tell lot tell me one thing over for, here. Tell me one thing over here. yeah, This case went to the Sindh High Court and stuff, right? yeah, today at morning, I guess today on morning. So who took it?
and what did he said and all the stuff. Uh, Explain it like he briefly. today one of the Pakistan's esports academy head was with the Wakar Zaka. They got to the court, but they have given the date. They have moved the date forward. You know that in Pakistan, Tariq pe Tariq and Tariq pe Yeah, Tariq on that. Yeah, that happens. stuff. So proper case in Sindh has not been registered yet, Okay. but Wakar Zaka is moving on to it, and he has said if on 9th July this case allows PUBG to be permanently banned, then he will take a strict action with filing the case of esports Okay. So by many of the, like, we have professional teams for esports, by taking their heads, and again many of the people support to unban the PUBG. well, till like I know I have the knowledge about all the esports and stuff. Yeah, Recently, while the Mountain Dew Gamers Arena happened in Pakistan of CS:GO and PUBG, yeah. it was banned at that CS:GO, time. PUBG, and Dota. So like Dota. Pakistan actually banned gaming in banned Actually, gaming over actually, here. I have to mention one more thing. First, Dio Gamers Arena was having Dota and CS:GO, but this Dio Gamers Arena only launched PUBG Mobile because it was a pandemic. There was no, like, online qualifiers and etc. So only the sports which should be played was of PUBG, only in esports. Yeah. So they launched only PUBG. Like, but the last year also contained PUBG, Dota, CS:GO, and the first contained only CS:GO and Dota. So PUBG is a part of esports in Pakistan. Yep. So like at first it was banned over here. Then after all the Yeah. elections and stuff happened, Imran Khan came and stuff. I think that esports and the prime minister and the president, everyone had a cut. Actually, I think Senpai, I think that Prime Minister has no hands to do this, because Prime Minister hasn't No, look, posted no, anything no, yet. look. Let me explain. Let me explain you one thing. Uh, some things like every approval for the country, everything from my point of view is like coming towards prime minister and president to approve all the stuff which is going to I think be in the so. country I and stuff. think so. Look, I also listen, think listen so, to me. but there's going to be some guy for excuse me Because for the because approval. like, look, like, we have we have seen that video where Prime Minister called the content creators of Pakistan Yep, to recently. have a meeting. Yep. Yeah, he said that bring dollars to Pakistan, Okay. earn more. Yeah. Like, he was saying that bring dollars. Then Let me tell then you. Let me tell. Let me how tell you one should thing. they bring dollars? I How also would want they my bring I dollars? also want the guy people who are watching this video and also my Pakistan community Don't to talk about this we that look, give me a like, second give me a we second should mention, the thing which is one going thing. on, the thing when the players bring dollars and stuff, what you do, Yeah. what the Pakistanis do. One of my friend bought a placement in Fortnite and achieved $800 and his tax cut out, and out of $800 he was able to receive $670 or $660, something like that. Why are you taking too much of it, man? I know you want Yeah. like you the tax, it's a rule over everywhere, but I think like it's too much like for us. We're doing something, we get the money, Hmm. and we're almost taking like 40% of our earnings. Why don't you just take 20% and give us the other? Because it's you're getting the money because of us. I'm not trying to offend or do something towards the government or Yeah, something. I'm not trying to do yeah, that. yeah, I'm yeah. just explaining a point of view We are of not both of us. spreading hate over our government. Our government is Really our good, government. really nice. It's Yeah, managing thing, but some weak points are coming over, which we all have to go through. Please do not provide hate towards government or anyone. If you have any point of view, just tell it. Just speak it to someone. yeah. Don't spread hate. Actually, I'm saying that 40% is too much, like you are saying, but our government is struggling a lot Yeah. in international affairs. We have a
big loan. Pakistan has taken a big loan. So by bringing dollars back, and look, Pakistan, the US dollars is very, very expensive here. Hmm. US dollars is very expensive here. Like it's 167 at the moment. I don't know, 168, 167. Yep, Yeah, it was just like that. it like it rises and it rises up Like and it rises down. the thing which It, comes up, we're getting a bit off track yeah, yeah. on this, but the thing which is like, uh, you want dollars, you let us do what we want to do. If we're doing something wrong, which is related to cybercrime or something, you have full authority to stop it. Okay, but if there's something not, tell me one thing: is PUBG related to cybercrime? No, man, No, no, not in any way. So no. why? Look, Why? you should have a specific reason. You have no reason. You're putting on the news and you're banning the goddamn game, bro. That's literally a maturity which you're showing towards the community. Actually, okay. While I was like watching last night or 2 days ago, watching a news, a kid hanged himself on onto a fan, and the parents saw only the game he was playing. Like the mobile content, the PUBG game was on, and they Look, thought that yeah, I know. our kid Our kids is suicide yeah just because of because of PUBG. Yeah. PUBG. Yeah, Okay. So this thing we which have. I'm going to mention is it's Yeah, going to be in the next part in the career and passion which we are going to discuss. yeah, But if we come back to the topic, the point which is I'm trying to assemble in the depth is that whoever is trying to take action on this, we have to support him. Okay, banning yeah. a game is not right Actually, we have if you to. don't have a We have specific to. point. If you had a specific point, or we Mm, saw it somewhere, or we got to know about it, we wouldn't say a word. But the yeah. government, I would like to tell this that nobody has never seen a point like this. Nobody has committed suicide or something. Nobody's getting distracted by the mind, for God's sake. If a guy is not Yeah. bringing, if a person is not bringing marks in the studies because of game, that thing he's interested in game. He wants to do gaming. And whatever I'm gonna say, or you guys are thinking, I'm gonna discuss in the next slide, not right now. But please, it's nothing over the game. There are millions of players playing the game, and millions of players have different problems with them. That's why they're playing game. We play Uh, games for our stress removal and stuff. So we just have to support the game. To the Prime Minister, we all gamers appeal to you that you should take a check on this. If you want dollars, we are working hard. actually, It's not that actually, easy to just, bring a just, placements and yeah, get the dollar, but we are yeah. working hard on it. We are practicing day and night to bring our placements, and we want all of you to support us, support all the content creator. Even if you see a guy who you think is not better at the moment, but he will get better. Support him, encourage him that you can do this. You can just go on and stream, share whatever you can do, Yeah, but encourage him. actually, we are just trying to unban this game for those who have made money through this game in Money they made Pakistan. career, yeah. Yeah, who have made their career through teams. Mhm. We have plenty of teams playing in, like, we have many of like tournament organizers like Mhm. IGN Gaming have organized it, Mountain Dew Gamers Arena. We have also some content creators who have launched uh, Their tournaments. own tournaments. Like, listen to me. Samsung sponsored PUBG. Yep. Okay, Yep. Samsung sponsored Ducky Bhai. Yep. Just listen to me. If I won S20 through PUBG, Man, that's that like, would be a big and achievement the for my guy family. and the Like, person who it's has like, won that, man, I'm kind of proud of him. Like he did something that uh, I thought like it's really rare for the Pakistan community of anyone to get it, but whoever get it right now, his parent would be proud of him. But at some point, they would be like, a bit sad, but like, that yeah. sadness would be off. They would be more proud of him. And if you're not, man, then I'm just not trying to be offensive, but you got some problems. You gotta fix that. Okay, okay. Listen to me. Every family doesn't support gaming. Yep, We have I'm many one of them. problems. Yep. Like, look,
at our young age, we were not allowed to go to gaming zones. Okay, Look, yeah. I don't want the to talk. I the don't want thing to talk about it. the, I don't want to the talk thing about is, myself. Yeah, no, go no, ahead. I'm not mentioning you. I'm I know you're not just mentioning saying me. in I'm just general. want to talk about it. I'm Yeah. just saying in general. I'm saying that why families are not supporting gaming zones? Why? Okay. Why Just I'm families? No. doesn't support, like, yeah, yeah. एक We सेकंड also wait रुको look रुको 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 look रुको 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 देखो ये जो पार्ट है ना कैरियर पैशन में आ रहा है तो अभी बस इससे पहले जितना बोले ना उसमें मैं एक जगह पे कट लगा दूंगा ऐसे बस ये मैं अब बस एंड ठीक लाइन है, बोल रहा हूँ जो मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा like this was ठीक the है. reason whichever went with the PUBG and stuff Vakarzaka is supporting Dakiba is supporting more content creators are supporting I hope you guys are on Twitter Yeah. please check them out these guys are And fighting for from the if you government want to to support, unban it Wakar Zaka, you should visit his channel on YouTube. You can support him by signing the petition. yep I've signed it, and I've also saying that you should also sign it, because yep it will help a lot, because he's directly filing it to High Court. yep Okay. okay No, he has, yeah, and this change.org is fake. Okay, okay just to uh mention that just change.org is fake. the support the petition support the community don't break Yeah, this don't break this relationship between all others all the players we have whole gaming community we know we're small we're not big enough but if you want to be big enough you got to support every single one this was it actually, for this I want to also conclude my thing. Only we are not growing in Pakistan. We have friends overseas, as you know, Senpai. We have Indian friends who we play with. yep. We play with Canadian friends as well. We have friends from Dubai as well. Even I have Okay. friends from Europe I have friends from Argentina I have friends from Brazil who I Yeah. play with So we have played with clan which are overseas. yep I have played for an American clan. We both have played with for an American clan. yep Yeah. It in was a for fortnight. I don't Then know then in the ac- start I don't know if you guys I didn't tell about this to anyone it's just to my Instagram all my friends in the start I was registered in a esports team of Europe but I was in it for a long time because there were some problems going on with the leader I was there for almost a month or two but after that I got a lot of experience in the gaming community and what's going on out there they are no I won't say that they are weak. I'll say that they are strong. They have a big community, but at some points they are weak. We are not weak. We are strong, but at some points we are not weak. We break the community. We don't have yeah. to do that. Yeah. I would like to end this part over here. Guys, check Vakarzako, check Dakibai out on Twitter, YouTube, Instagram, all the socials. Support them. Yeah. So guys, after discussing who was supporting the PUBG controversy and stuff, after that we're moving on the third topic, which is passion as a gaming as a passion. Sorry. Um, And the careers. yeah, the careers. Careers. We are actually living in Pakistan. Whoever is viewing this video internationally, um, and the people who are viewing locally in Pakistan who are living over there know what I'm going to talk about. Uh, Pakistan society doesn't support gaming enough. Like mostly in houses, mostly in families, but gaming is not supported. As in my family, like they know I want a game, but they at a side are confused that we should let him or we should not let him. I'm gonna talk about myself later. The thing is that when a lot of players do not get um, get to choose their passion as a gaming or get to choose their career what they're wanting um they're just like forced by parents in a way of assaulting them like uh slapping them or just like not actually like telling them Yeah. softly that you should do this or we should know better or like asking his own opinion they just like
go assaulting him or by force let him choose his career what Yeah, they want. actually, Pakistani parents are not like, they just know what, like, या तो हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा या तो हमारा बेटा इंजीनियर जो बनेगा. बात they है, have they have they have two things three in things. their mind, या तो And बेटा हमारा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा. if any यार third category comes, you're like, what the heck is नहीं, that, थर्ड man? कैटेगरी क्या है, ये What's क्या है, that? गेमर क्या है, No, गेमर wait, क्या wait. है. Is that is that anything like they're like that, like totally. But the thing they're like नहीं, गेमर क्या है, तुम कितने पैसे कमा लोगे, कितने कितने पैसे नहीं कमा तुम लोगे, एक सेकंड हाँ तुम कितने गेम खेलोगे तुम्हारा, कब तक खेल लोगे bro like हाँ ये I'm like taking that like on a serious note. I'm trying to make it my passion. Like bro, if you be a wholesome content creator, there are like millions of ideas in your mind. and Yep. then they start giving Their the own things like, examples. Their own examples that no. we They start giving the example of their cousins. They yeah say like, the नहीं relative वो तो एज तेरे लाया है पढ़ाई में, तुम क्या ला रहे हो, एज तेरे गेमिंग में लाओगे तुम. तुम तो They ये नहीं कर started सकते saying like वो this. ये कर रहे like they started to compare us. Wait, thing is like in every family Like they compare, actually but it's a struggle. Now look at this. We got like, we got pressure from like for the esports. अब हम जो है हमारे फैमिली में लाइक कोई हमारी एज का भी होगा ना, तो हमारी फैमिली बोलेगी वो तो फुटबॉल एकेडमी जाता है, वो तो क्रिकेट एकेडमी जाता है, तुम कौन सी एकेडमी जा रहे हो. सही है. तो ही वाज लाइक वो तो सिर्फ 5,000 पे कर रहा है, 10,000 पे कर रहा है पर मंथ, और तुम मुझसे जो है वो 60,000 70,000 का पीसी मांग रहे हो. सो दे आर लाइक कि भाई इन्वेस्ट तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो इस चीज में, और तुम कमा नहीं सकते इससे. अच्छा कुछ जगह पे ये होता है कि कुछ फैमिलीज की जो वर्ड्स होती है वो इतनी नहीं होती कि वो एक पीसी अफोर्ड कर पाए बट देयर लाइक द किड ट्राइज टू फाइंड वेज टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर मे बी वो फोन से वाइन्स बनाने लग जाता है या फिर वो फोन से वीडियोस बनाने लग जाता है ब्लॉगिंग करना शुरू कर देता है ठीक जस्ट ट्राइंग टू गेट इन द कंटेंट ठीक. क्रिएशन थिंग देखो अगर आपका फुल टाइम इंटरेस्ट होता है ना किसी भी चीज में सो यू ट्राई टू फाइंड वेज स्ट्रीम्स टू गेट इनटू दैट freaking branch सही है ठीक है. थिंग इज अब दैट अब हमारी जो फैमिलीज वगैरह है ना कहीं भी आप चले जाएंगे ना कभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ट्राई कर लेना कुछ गलत हुआ मार खा लेना मसला नहीं है बोलना सेन भाई ने बोला था सही है मुझे जानते भी नहीं वैसे भी सीन हो के भाई कभी कोई बात हो रही हो ना जैसे अम्मी अब्बू की या कोई रिलेटिव आया हुआ हो, उसके सामने बोलना कि अगर कोई मैं ट्राई बंदा करूंगा. नहीं उसके सामने बोलना कि अगर कोई बंदा गेमिंग में जाए तो आप क्या कहेंगे बस ये पूछना और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर पूछना अपने ऊपर आने नहीं देना बात बोलना बस मैं नॉर्मल जनरल बात कर यार वो लोग करते ही नहीं है बात, वो बोलेंगे सही है ना, गवर्नमेंट ने सही बैन किया था पबजी, तुम लोगों को खेलना ही नहीं चाहिए, वो ये बोलेंगे वो बात. बोलेंगे लेकिन वो जो है ना कुछ एक तो मैं बहुत ही इलॉजिकल अजीब सा जो है ना बना हुआ कोई जवाब दे देंगे अब तुम्हें क्या करनी है देखो यार देखो, मैं एक द सेकंड थिंग इज एक सेकंड द एक सेकंड थिंग देखो इज मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप उनसे जाएं आप उनसे बहस करें किसी बात पे लेकिन आप सिर्फ उनका ओपिनियन लें कि वो क्या सोचते हैं वो ये बोलेंगे ठीक है आई नो कुछ होते हैं ऐसे रिलेटिव्स या किसी के चाचू मामू या कोई होंगे जो गेमिंग को सपोर्ट करते हैं मोस्टली फैमिलीज में कोई सपोर्ट नहीं करता लिटरली वो बोलेंगे कि यार एक्चुअली अ, मैं तुम्हें एक बात तो बताऊं, एक मैं तुम्हें सेकंड एक वो बात बोलेंगे बताऊं. यार ये सब तो बेकार है लाइक दिस ऑल थिंग इज जस्ट लाइक सो लाइक क्रैप मैन इसमें नहीं जाओ तुम्हें कोई ठीक है पैसा वैसा ठीक कुछ है. नहीं लिटरली हाँ. जब भी तुम जॉब लेने या तुम पढ़ाई कर रहे हो ना तुम्हारे हम्म पेरेंट्स फैमिली का मेन मकसद है पैसे अब अपने ऊपर हम्म बात लाता हूँ साइकोपैथ जरा थोड़ी ठीक लंबी है. बात जाएगी इधर मैं हाँ जब ऑलमोस्ट 13 साल का था यार मैं सुनने के लिए तैयार हूँ. जब मैं 12-11 साल का था आई वाज इन क्लास 6-7 हम्म आई स्टार्टेड माय फर्स्ट यूट्यूब चैनल जिसमें मैं बहुत ज़्यादा क्रिंज था अपने कज़न के साथ एक जना लाइक स्क्रिप्टेड प्रैंक्स बनाता था अब उस वक्त मुझे पता नहीं था कि स्क्रिप्टेड भी कोई चीज़ होती है जस्ट लाइक प्लान कर ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे और बता देंगे प्रैंक हो गया सही है ये बताएंगे ठीक है. फुल मतलब शामिर अब्बास अब क्या हुआ कि अब सीन क्या हुआ कि देन मैंने डिसाइड किया मैं करता हूँ हमने चैनल शुरू किया 78 सब्सक्राइबर 100 सब्सक्राइबर हो गए
मैं अपने स्कूल में बहुत बुली हुआ करता था। मेरे काफ़ी सारे दोस्त थे जो मुझे ना बुली करते थे इस बात पे, और मैं उस वक़्त काफ़ी सेंटी भी था। मैं रो जाता था, और मैं जब रोता था तो मैं साइड में बैठ जाता था। लिटरली वो मुझे ऐसा बुली करते थे कि मैं उनको मारता था, और जब मैं मारने जाता तो बड़ा फड्डा हो जाता था। तो मैंने जो ना अपना चैनल डिलीट कर दिया एक दिन। घर आया, मैंने डिलीट कर, मैंने कहा मुझे करना ही नहीं है। काफ़ी टाइम बाद, महीनों के बाद मैं देखता रहा। फिर मैंने उसके कोई 8 महीने बाद मैंने पोकीमैन को डिस्कवर किया कि यार ये कंटेंट क्रिएटर है। वहाँ मैंने मतलब उसका कंटेंट देखा ना, मैंने देखा यार कम्युनिकेशन विद हर फैंस, और द वे शी इज मेकिंग कंटेंट, भाई गेमर नहीं है, शी मेक्स अ लाइक रियली लाइट गेमिंग कंटेंट, बट उसके लाइट कंटेंट को लोग देखने क्यों आते हैं? सही, एक पहली बात कि वो लड़की है, सही, वो बात एक साइड पे। दूसरी बात, लोग क्या देखते हैं कि यार उसके कंटेंट में कुछ तो है जो वो देखने आ रहे हैं, क्या है ऐसा? और वो जानने की जो है ना पावर हर किसी में नहीं होती। वो बहुत उन लोगों के अंदर सिर्फ होती है जो कंटेंट क्रिएशन को सीरियसली लेते हैं। मुझे बात नजर आ गई, आज भी लोग मुझसे पूछते हैं यार तुम्हारी पोकेमैन की इंस्पिरेशन है भाई। मैं बोलता हूँ यार, मैं मतलब सोचता हूँ कि मैं यार इसे एक्सप्लेन किस तरह करूँ। मतलब हम्म, बात जो है ना थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। फिर वो उसको गलत मायनों में ले जाते हैं कि यार वो लड़की है तो मैं इसलिए, और ये वो, फिर मैं, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मैं ब्लॉक कर देता हूँ बंदे को। फिर क्या हुआ कि तेरा, जब मैं 1 साल बढ़ यार गया, फिर देखो, मैंने, मसला ये है कि आप किसी की इंस्पायरेशन को बुरा नहीं कह सकते। लोग इंस्पायर होते हैं तो उसको वो मानते हैं कि भाई हमें बनना ही इनके जैसा है, ठीक है। आप किसी के इंस्पायरेशन को बुरा बोलोगे ना, तो देखो, जो इंस्पायर हुआ है वो आपको कख कुछ नहीं छोड़ सकता। वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो ऐसा लगता है। अब देखो, जब मैं, मतलब मुझे 1 साल हो गया, मैं 13 साल का होने लग, 13 साल का हो गया था। देन आई स्टार्टेड अ चैनल नेम्ड क्रीम गेमर। सही है, मैंने ये नॉर्मली ऐसी समझ आया, मैंने बना लिया चैनल। उस पर मैंने व्लॉगिंग और रोस्ट कंटेंट अपलोड करना शुरू किया। हम्म और मीम टाइप का जो है ना कंटेंट मैंने बनाना शुरू किया, सब किया। उसमें है ना, मतलब मुझे बहुत बुली करने लगे मेरे दोस्त। मुझे लिटरली बोलते थे कि ये तुम क्या बना रहे हो ये, और लिटरली एक बार स्कूल में जो है ना लाके सबको दिखाने लग गए, और मैं काफ़ी अनकंफर्टेबल फील किया उधर। मैं रो गया। मेरी टीचर ने पूछा आप ये यूट्यूब करते क्यों है? मैंने कहा टीचर, मेरा जो है ना उस वक्त सिर्फ दिमाग में था यार पैसे मिलेंगे। मैंने कहा टीचर पैसे मिल जाएंगे ना तो हम्म मैं इसलिए करूँगा। मैंने कहा अच्छा। और उस टीचर पे मुझे इतना गुस्सा आया ना, आज वो मुझे कहीं मिल जाए ना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इज्जत करूँगा वैसे। वो थोड़े हफ्ते बाद पेरेंट टीचर मीटिंग थी। मेरी अम्मी को बोलते हैं कि आपका बेटा जो है ना यूट्यूब में लग गया, उसको पैसे कमाने का शौक चढ़ गया है। मेरी अम्मी घर आती है, मेरे मुंह पे 3 चमाटे कराती है, और फिर बोलती है कि तुम किस कामों में लग गए हो। मैं बोलता हूँ यार, मतलब अब भाई टीचर्स को जो है ना हम ऐसे समझते हैं टीचर हमारी बात मतलब समझेंगे। उसने समझा नहीं, उसने सुनानी शुरू कर दी भाई। मैंने कहा अच्छा भाई सही है, मैंने अपना चैनल डिलीट कर दिया भाई। यार, और बिकॉज बिकॉज द थिंग इज कि यार, सोसाइटी। सोसाइटी सोसाइटी ऑब्वियसली। देखो, मैं तुम्हें जानता हूँ, ठीक है। तुमने बहुत डिफरेंट टाइप का कंटेंट बनाया है, तुमने स्ट्रीमिंग की है, तुमने टेक रिव्यूज दिए हैं, तुमने मीम्स बनाई हैं, तुमने सब कुछ किया। एट द एंड तुम्हारा कंटेंट, देखो, मैं तुम्हें बहुत शुरू से नहीं जानता, हमारी दोस्ती को 1 साल हुआ है कंप्लीट जून में, अच्छा या ठीक है। बट देखो, सीन ये है कि जब मैंने जून से तुम्हें देखा है, मुझे कंटेंट तुम्हारा कौन सा पसंद आया? इंस्टाग्राम बीट बॉक्सिंग। क्योंकि देखो, मुझे पता है तुमने छोड़ दी है बीट अच्छा, बॉक्सिंग, ये यार एक ठीक है। हिडन टैलेंट है, हर किसी को पता नहीं इस बारे में। लुक, आई नो हाउ टू बीट बॉक्स बट आई डोंट यूजुअली डू, मतलब एक लाइक जस्ट लाइक बोर होता हूँ कर लेता हूँ। यार, मैंने एक बार लिटरली, मैं लिटरली भूल गया था यार, मैं मुझे बीट पता है बॉक्सिंग क्या, करता हूँ। मुझे पता है क्या, मैं अभी तुम्हें एक बात बोलूंगा, दिल से मानना वो बात, मैं तुम्हारा फैन हूँ बीट बॉक्सिंग का, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है, मतलब स्कूल में मैंने किए तो टीचर्स भी हैं, काफी लोग भी हैं, तो बोलते हैं लेकिन लेकिन। मैं पहला बंदा था, और मैंने मैं जो है इसको ना मुझे अच्छी पर्सनली लगती मैसेज है किया था। लेकिन हाँ हाँ, ये मैं पहला बंदा था जिसने इसको पर्सनली मैसेज किया था। मैं बोला था तू बीट बॉक्सिंग वॉइस वॉइस मैसेज में भेज, तू अभी भेज, मुझे सुनने का दिल चाह मुझे रहा है। काफी लोग बोलते हैं। मैंने तेरी सारी यूएसबी, इसने इंस्टाग्राम पे जो है अभी भी बना वो भी हुआ है, बनाया था पेज बना हुआ है, यूएस अकाउंट। अंडरस्कोर हाँ, बीपीएन। पेज है, ठीक है। उस पे मैंने बोला यार, मैंने ये 10-15 बार रिपीट में सुन ली है, तू नई बीट बॉक्स मुझे भेज। अब हुआ क्या कि मतलब जब मेरी बीट बॉक्स अच्छी होने लगी ना, लिटरली मैंने अपने स्कूल में एक
स्पेसिफिक डे पे, बीट बॉक्स टीचर्स का। डे पे बीट बॉक्स करने के लिए मुझे बुलाया, मतलब बुलाया गया, मैं क्लास में करता था, लड़कों ने बताया, मुझे बुलाया गया, मेरी टांगें कब आ रही थी, मुझे लग रहा था मैं बेहोश हो जाऊंगा, स्टेज से गिरूंगा, गिर जाऊंगा, हॉस्पिटल हॉस्पिटल तक। लेकिन वो जो परफॉर्मेंस थी ना उमर, जब मैंने किया तो क्या बताऊं आपको मैं, फिर वो मतलब फिर मुझे डर लगने लगा यार, ये मेरा मतलब मैं अगर काफी करने लगा ना तो मेरा ये कहीं मेन मतलब पैशन टाइप ना बन जाए। और मैं उस वक्त काफ बहुत था कि यार यार ये बनना है, ये बनूंगा कॉडफिश की तरह, और ये वो सब है, मुझे था शौक चढ़ा हुआ। मैंने कहा नहीं यार मुझे। लेकिन अभी भी देखो देखो, इसका भी कोई डिस्कस नहीं करता है इस बारे में। किसी से भी पूछ लो आप, किसी, यार आप ट्राई कर लो, बेशक जो देख रहे हैं आप ट्राई कर लो, आप जाके पूछना अपने रिश्तेदारों से, आपको बीट बॉक्सर्स पता है? वो बोलेंगे "है? आपको ये क्या पता है क्या होता है बीट बॉक्सिंग होती क्या है? ठीक है, आप उनको किसी, अच्छा मैं एक जानता हूँ, तुम भी शायद जानते हो, जीसीए का जो बीट बॉक्सर था जो उसामा नेशनल शायद, लेवल पे बीट बॉक्सिंग करता है, उसामा शायद। उसामा शाहिद। आप किसी को जाके पूछो उसामा शाहिद, जानते हैं आप लोग उसामा शाहिद को? कोई कुछ नहीं जानता उसके बारे में, असल में क्योंकि हमारी उसको, सोसाइटी में क्या है कि जो बचपन से हमारे फादर्स ग्रैंडफादर्स ग्रेट ग्रैंडफादर्स को बताया गया है कि उन लोगों के दिमाग वो में जो है बोलते हैं कि कि भाई भाई वेस्टर्न, पढ़ना है, तुम लोग पढ़ना है। वेस्टर्न चीजें क्यों करते हो, नहीं नहीं तुम नहीं लोग नहीं, वेस्टर्न चीजें वो क्यों बात करते नहीं है हो, यार, ये वो तो बोलते हैं। अलग ही वो फैमिलीज अलग होती हैं। पढ़ना है, डिग्री लेनी है, शादी करनी है, हम्म, पैसे कमाने हैं, बस जॉब। घर में बैठ जाओ, बस नहीं, घर में नहीं बैठना, बस। पैसे आने चाहिए, फैमिली को फीड करना नहीं है, नहीं, बस। जॉब करके नहीं, जॉब अब जॉब करते करो, जॉब जॉब करके करके बस बस अब घर जॉब में बैठ जाओ। करना है, जॉब घर करना है, में घर में बैठ बैठना के कुछ ना करो, बस जॉब करो, पैसे आ रहे हैं, उसके अलावा तुम एक्स्ट्रा टैलेंट कुछ करो ही नहीं, जॉब करके पैसा कमाओ, बस। बाहर अगर हम हमारे, मैं कह सकता हूँ हमारे पेरेंट्स है ना बिल्कुल अमेरिकन पेरेंट्स की तरह बन सकते हैं। अमेरिकन पेरेंट्स में देखो क्या बात है, अब तुम लोग यहाँ शुरू हो जाए अब बर्गर है, बर्गर देखो, बर्गर की बात नहीं है। क्या हुआ था कि मतलब मैं जो है ना लिटरली बिल्कुल था कि जब मैंने आया ना समझ कर ये बीट बॉक्सिंग सब सीन है, ये है वो है, तो मैंने हम्म। कहा कि यार मैं इसको ओवरकम करता हूँ, जो मुझे करना है वो करना चाहिए। मेरा जो है ना पीसी खराब था, ऑलमोस्ट 8 महीने हो गए थे मैंने पीसी यूज़ नहीं किया था। उसके बाद मैंने अपने बाबा को बोला नहीं, इससे पहले थोड़ा पहले अगर जाए ना तो फोर्टनाइट वर्ल्ड कप आने वाला हम्म। था। मैं अपनी बहन के लैपटॉप पे खेलता था, कोर i5 सेकंड जेन का उसका लैपटॉप है, उसके ऊपर मतलब 40 एफपीएस मुश्किल से आती थी। अब मैं जो है ना उसमें मतलब मैंने एरिना ग्राइंड करना शुरू किया कंपैरेटिवली। मेरे पास PS4 था लेकिन मुझे जो है ना कंट्रोलर, मैं शुरू से पीसी गेमर हूँ, मैंने कहा यार पीसी पे करते हैं, कंट्रोलर पे स्टोरी मोड गेम्स खेलेंगे। मैंने अपनी बहन के लैपटॉप पे खेलना शुरू किया, एक हफ्ते में जो है ना डिवीजन 6 पहुंच गया मैं। उसके बाद थोड़ा टाइम लगा जो है ना, मतलब फिर पेपर शुरू हो गया तो मैं चैंपियन लीग नहीं कर पाया। फिर जब वर्ल्ड कप की अनाउंसमेंट आई ना कि हम वीकली ओपन स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने चैंपियंस लीग कर लिया था। उसके बाद मुझे नॉलेज नहीं थी कि एंड गेम स्क्रिम्स भी कुछ होते हैं, तो मैंने जो है ना 2 वीक्स वेस्ट कर दिया ऐसे, और फिर या मैंने कहा उस अब टाइम पे दवा तुमने कर शुरू ले। किया था ना, उस टाइम पे तुमने शुरू शुरू नहीं किया था, किया था कंपेटिटिव, हाँ कंपेटिटिव गेमिंग में एंटर हुआ था मैं। कंपेटिटिव गेमिंग में, वही कह रहा हूँ मैं, हाँ कंपेटिटिव गेमिंग में तुम घुसे थे समझ लो, तो बस वो मैंने कहा स्टार्ट की थी यार तुमने। चलो नहीं हुआ सही किया। मैंने अपनी मामा को बताया था कि जाना कि भाई न्यूयॉर्क जाएंगे, वहाँ $3 million प्राइस पूल प्राइस है, फर्स्ट पोजीशन का। हम जो है ना सेमीफाइनल्स में आ गया हूँ, बट लाइक सेमीफाइनल्स क्वालिफायर्स के सेमीफाइनल्स में आ गया हूँ। फाइनल में अगर चला गया और टॉप 10 में आ गया तो न्यूयॉर्क जा सकता हूँ, या टॉप 10 में ना भी हूँ तो पैसे मिल जाएंगे। बड़ी प्राउड हूँ, मैंने कहा वाह अच्छी बात है, क्योंकि मैंने यहाँ नाम लिया पैसों का। बात क्या होती है, हमारी फैमिलीज देखती है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। मैं जो है ना एक लॉयल कंटेंट क्रिएटर हूँ, सही है मेरे लिए। मैं ये देख के कंटेंट नहीं बताता कि मुझे पैसा मिल रहा है या मुझे फेम मिल रहा है, सही है। लिटरली मेरा एक व्यूअर होता है ना, मैं तब भी स्ट्रीम करता हूँ। क्यों करता हूँ भाई, अच्छा। क्योंकि वो मेरा पैशन है, हम्म। मुझे इंटरेस्ट है। बस उसके बाद ये ये, सब अच्छा, द थिंग इज कि हमारी फैमिलीज जो होती है ना, हमारी फैमिलीज में ये होता है कि तुमने जैसे बोला फोर्टनाइट का, कि मैं टॉप 10 में आऊंगा तो मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा, ठीक है। अब तुम यही कहते ना, डिमोटिवेशन वहीं से शुरू भाई, अम्मियों की डिमोटिवेशन। अबे तुमने पढ़ाई में क्या किया, तुम वहां से वहां जा मत, अबे यार आप डिमोटिवेशन पहले शुरू कर देते अच्छा यार, मतलब। नहीं, मैं जो पॉइंट लाना चाह रहा हूँ ना, मैं वो पॉइंट लाना हाँ चाह रहा वो हूँ। मैं अब कहता मैं हूँ यार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम जैसे फर्ज करो इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम ड्यू गेमर्स अरीना कराची क्वालिफायर्स में क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है। अब हमें चांस मिल रहा है ड्यू गेमर्स अरीना लाहौर जाने का, ठीक है। तो हमारी अम्मियां क्या लेके बैठ जाएंगी, वो देखो जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के दूसरे, वो तो
अरसलान ऐश को देखो, वो तो जापान जाके मतलब खेलता है, यार तुमने क्या कर आप दिया? खुश, यार देखो हम आपको खुश करना चाह रहे हैं, हम आपको पूरी जिंदगी खुश देखना चाहते हैं, हमसे प्राउड हो जाएं प्लीज। और क्या बोले यार, हम एक चीज ट्राई कर रहे हैं, आप करने तो दो थोड़ी देर। वो समझते हैं कि भाई एक महीना करेगा, यार सैलरी सैलरी की असल तरह में पैसे मिलेंगे। भाई वो गेमिंग समझते हैं, में वो समझते हैं कि स्ट्रगल भाई बहुत होती ये है। कहाँ से पहुंच जाएगा। ये देखो वही सीन है ना, हम्म, क्रिकेट वाला ही सीन है। ये क्या करेगा, अंडर 19 में चला गया, अंडर 19 से क्या खेल लेगा, ये डिविजन्स खेल लेगा, अपनी एरिया के लिए खेल लेगा, आगे पाकिस्तान में थोड़ी इसको जगह मिलेगी। इधर क्या मसला होता है ना, सबसे पहले कि भाई आप अम्मी अबू जो है ना, ये समझते हैं कि गेमिंग से पैसा सैलरी की तरह आता है, एक महीना के लिए पैसे मिल जाएंगे। भाई अगर आप एक बिल्कुल सीरियस नोट पर अगर आप कंटेंट क्रिएशन या गेमिंग शुरू करते हो ना, एक बात बता दूं, स्ट्रगलिंग बहुत है, रातों की नींद खत्म करना, रातों की नींद खत्म हो जाती है। भाई मैं हूँ, सही है, अभी कोई 11-20 हो रहे हैं जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, सही है, मैं अब सोऊंगा सुबह के 5 बजे 6 बजे। अभी ये वीडियो, अभी ये पॉडकास्ट खत्म करके मैं करूंगा ट्विच स्ट्रीम, सही है, ट्विच स्ट्रीम खत्म हो गया, मैं वहां से करूंगा क्लिपिंग, क्लिपिंग में डालूंगा फेसबुक पे, फेसबुक के बाद मैं बात बात करूंगा चिलविल करके, फिर बेड पे जाऊंगा, नेटफ्लिक्स देखूंगा, नेटफ्लिक्स देख के फिर सोऊंगा मैं। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल रूटीन है। अब मैं बताऊं, ट्विच मुझे पता है हम्म। मेरे ट्विच पे 3 व्यूअर आते हैं, मैं होता हूँ, ये होते हैं, और एक दो मॉड्स यार होते हैं, सही है। देखो, इसको सपोर्ट करने के लिए ना, जो उम्र की बात है, जो उम्र की बात है, इसको सपोर्ट और इसका प्रूफ देने के लिए मैं हूँ, क्योंकि मैं भी, अब मैं एक या दो टाइम शायद यूट्यूब की जो वीडियो थी हमारी, वन मैन आर्मी, वो हम वो लोगों थी, ने साथ बैठ के और जो है, ह्यूमेन, हम लोगों ने साथ बैठ के एडिट किए। मैं ह्यूमेन इसके साथ डिस्कॉर्ड में नहीं बैठा नहीं, हुआ था, वो वो वन हमने मैन आर्मी नहीं थी, वो थी ह्यूमेन लैबरेट, जिसके अंदर वो, ह्यूमन लाइब्रेरी जो भी हाँ, था, जो हाँ जिसमें हम थे, वो हमने बैठ के तकरीबन 4 घंटे या 5 घंटे जो है वो बैठ के वीडियो एडिट की थी। अब मैं ये बात नहीं करूंगा, मैं वो टिकटॉकर वाली बात नहीं करूंगा। लोग कंपेयर करते हैं दूसरी चीजों को दूसरी चीजों से। अब तुम देखो, अब तुम किसी भी रिलेटिव के यहाँ चले जाओ, बोलो यार आप क्या करते हो कि आप इतना टाइम लग जाता है। आपकी अम्मियां तो वो माहिर होती है ना भाई अपने बेटों की बात बताने में, हाँ यार इसको तो 3-4 घंटे लग जाते हैं ये चीजें करने में। आपके रिलेटिव पूछते हैं कि 3-4 घंटे में बेटा क्या कर लेते हो, एडिटिंग करने का कौन सा मुश्किल है। भाई आप लोग आके बैठ जाओ हमारी हाँ जगह, कर लो कर लो। भाई अजी। आओ भाई, आप आओ, आप हमारी जगह बैठ जाओ, हम आपको सब दे रहे, सब फैसिलिटीज आपको, मैं अपन माउस सब ये कुछ रहा, गेयर वेयर कीबोर्ड सब देंगे। ये रहा, स्क्रीन तक यही है, पीसी आपके पास है यार, करो करो, हम आपको देने, आप आपको करो, टाइम जितना लेना है ले लो, आप ला ठीक के है। दिखा दो, खत्म, प्लेसमेंट। अब वो अलग बात है कि आप जो है बिल्कुल वो सिंपल लेवल पे चले जाओ, आप बोलो भाई हमें 2080 लगा के दो, आप हमें जो है वो अबे प्रोफेशनल वो टीकेएल शौके प्रो होते हैं का वो लोग, अलग कीबोर्ड अलग ही आदत कीबोर्ड है लगा के शौक। दो। अच्छा, कजन्स के जो शोके होते हैं ना हमारे, अभी ओए किसी हाल में कोई नहीं, अब मेरे होए एक होए होए कजन होए। है, मुझे पता है वो वीडियो देख रहा होगा, मनुष्य इंसान, क्या उसने मुझे सजेस्ट किया, ये पीसी बनवा लो, उसने कहा इसमें 4 जेन लगवाओ, मैंने कहा अफोर्ड अभी इतने पैसे नहीं आई है, नो, मैंने कहा अभी मैं जानता हूँ उसको। मैंने कहा अभी इतने पैसे नहीं है, मैं जरा तुम दूसरी बताओ, कह रहे 3rd जेन के सीरीज लगवाना, सीधे मैंने कहा सही है। मैंने कहा सदर, मैंने कहा भाई GTX 1063 ये 3 GB है, मैंने कहा यार आप 3 GB की अलग कहानी है भाई, मैंने बोला था कि 1050 Ti लगवा दे, वो GTX 1060 लगवा के एक अंकल ले आए थे, वो मेरे बाबा के दोस्त हैं। मैंने कहा यार ये हम्म। कैसे, क्या पता चला बहुत टाइट ग्राफिक कार्ड है भाई, 1050 से ऊपर आजकल 1060 चल रहा है, मैंने कहा सही है, बहुत टाइट लग गया, अबे मिनी है मेरा। भाई। फिर जो है ना मसला ये था, मुझे किसी से पीसी गिफ्टेड था, उसके प्रोसेसर थोड़ा आउटडेटेड था, वो i3 सेकंड जेन लगी हुई थी, मेरा कुत्तों वाला बॉर्डर लैग होता था, लेकिन मैं फिर भी उसके अंदर मैंने मोन्टाजेस बना के अपलोड किए हैं उस 30 fps में, एडिट, फिर रेंडर 30 i3 सेकंड जेन पे रेंडर भी किया और अपलोड भी किया भाई, व्यूज भी आ गए अच्छे खासे। उसके बाद मैं, मेरा मदरबोर्ड उड़ गया था, FNCS चल रहा था स्क्वाड्स का, सही है, मेरा मदरबोर्ड उड़ गया, फ्लक्चुएशन हुई, मदरबोर्ड गया। हाँ, और इसके FNCS इसने मेरे ख्याल से, तुमने क्लब में भी खेला है मेरे हाँ ख्याल से। मैंने FNCS और काफी सारी चीजें ना क्लब में भी खेली। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 8-6 7 महीने बाद मैंने कहा यार ये मदरबोर्ड बाबा बनवाना है, और मैंने जाना नया प्रोसेसर लगवाना है, उन्होंने कहा सही है बेटा, पैसे जमा कर लो, मैंने कहा सही है, ईदी वीदी पड़ी हुई थी काफी सारी, मैंने कर ली उससे। मैं गया मैंने कहा भाई इसके अंदर एक आप गीगाबाइट का मदरबोर्ड लगा दें और i7 3rd जेन की सीरीज लगा दें, उन्होंने कहा ठीक है सही है, हम लगा देंगे, कर लेके आए, दो कजन वजन को बताओ अबे यार ये FPS फुल सेट सब सेट चल रहा है, ठीक। एक हफ्ते बाद बोलता है यार तुमने बड़ा कचरा पीसी में, मैंने कहा कर रही हो तुम, कह रहे नहीं यार तुमने जो है ना अजीब प्रोसेसर अजीब, मैंने कहा यार, कह रहे मैंने कहा था 4th जेन लगवाओ, लेने लग गया फालतू में लेने, मैंने कहा अबे भाई घरों को बात ही नहीं करनी,
तो मैंने वहां से यार decide किया। अब देखो मसला ये है कि हमारे यहाँ जो है ना डॉलर महंगे हैं। अब जो बंदा अब तो मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज दिखा रहा हूँ। मैंने रिसर्च की है। मैं एक्चुअली जब मैं तुम्हें पता है जब मैंने गेमिंग स्टार्ट की थी तो मैं सब चीजें शुरू करना कर दिया था। मैं CSGO की वीडियोस देखी, मैंने बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज में गेमिंग की सिचुएशंस देखी, मैंने देखा कि भाई कौन सी कंट्री जो है वो बेस्ट है। अच्छा मैं ऐसे ही देख रहा था, मैं एक दुबई का गेमिंग जोन देख रहा था हम्म, जहाँ पे लाइक गेमिंग पीसीस लगे हुए थे। अच्छा वे हमारे यहाँ भी गेमिंग जोन्स है। कराची का बेस्ट गेमिंग जोन तुम बता दो कौन सा है भाई? ऑरेंज आइजन, स्पोर्ट्स। नहीं, ऑरेंज है। ऑरेंज आइजन, ऑरेंज आइजन ऑरेंज दोनों ही आइजन। है, बस आइजन थोड़ा छोटा है, ऑरेंज बड़ा है, बाकी दोनों में सेम चीज है। यार देखो वी कैन देखो से आइजन छोटा है ऑरेंज गुलशन बड़ा है। के लिए आइजन अच्छा है, जौहर के लिए और बाकी जाके ऑरेंज अच्छा है। यही है। देखो ऑरेंज और सब आइजन छोड़ो, ही यहाँ पे दोनों कर रहे अच्छे हैं हैं, ना, दोनों ऑरेंज अच्छे ही हैं और भाई, दोनों आइजन अच्छे कर हैं, रहे हैं ना। दोनों अच्छे हैं, ठीक हाँ। है, ऑरेंज की मैं तुम्हें स्पेक्स बता देता हूँ। ऑरेंज में लगा हुआ है 1050 या 1050, हाँ 1050 लगा हुआ है मेरे ख्याल से। 1050 Ti ऐसी ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, 16 GB रैम लगी हुई है। और बाकी PSU वगैरह वो तो देखा जाता है बाद में। लाइक बजट उनका पीसी होगा अराउंड 65 to 70 thousand का। हम्म, और बाकी स्क्रीन होंगी 40 thousand 50 thousand हम्म, एटलीस्ट। ठीक है, अब मैं तुम्हें दुबई के गेमिंग जोन का पीसी की स्पेक्स बताता हूँ। कोर i7 9th जनरेशन। ओके, लिसन लिसन, अभी और तुम्हारे पसीने छूटेंगे, टेंशन नहीं लो। वो अच्छा मैं ये नॉर्मल का बता रहा हूँ, ठीक है? ये मैं नॉर्मल नॉर्मल जो नॉर्मल चार्जेस है ना उनके, मैं इसका बता रहा हूँ। ठीक है, कोर i7 9th जनरेशन आपका 1080 Ti। ओके, हम्म, 1080 Ti। मैकेनिकल कीबोर्ड्स रेजर। ठीक है, हम्म, रेजर मैकेनिकल कीबोर्ड्स, रेजर माउस। ठीक है, और रेजर के क्रैकन। सही। नॉर्मल नॉर्मल बता रहा हूँ। उनके प्रीमियम गेमिंग जोन के मैं बताता हूँ सब कुछ। सबसे पहले तो 32 GB रैम, 850 वॉट्स PSU। ठीक है, 2060 ओके, ओके। 2060 का कार्ड लगा हुआ है। ओके, 2060 कोर i9। अनलॉक्ड। कोर i9 जो अभी ESL में प्लेयर्स यूज कर रहे हैं। 10th या 9th मुझे याद नहीं है, वीडियो मैंने देखी थी वो। लाइक नाइस। दुबई का, और वो पता है क्या मैंने क्या लिखा था यूट्यूब की सर्च पे? दुबई चीपेस्ट गेमिंग जोन, दुबई चीपेस्ट गेमिंग जोन और उसमें ये विद आया। 100 MB फॉर वन पीसी। 100 MB एक पीसी पे कौन सप्लाई करता है ब्रो? लॉल। एक पीसी या एक रूम, या एक रूम आई गेस। हाँ एक रूम में। अच्छा प्रीमियम की मैं कंप्लीट करता हूँ तुम्हारे। प्रीमियम के उनके गियर्स हैं, स्टील सीरीज का हाइपर एक्स हर एक पीसी पे लगा हुआ है। स्टील सीरीज और हाइपर एक्स दोनों हर एक पीसी पे। और वो लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ हर महीने गियर चेंज होता है। नए गियर चेंज होता है। जब मैं ऑलमोस्ट 14 का हुआ तो इन द मीन वाइल ये आइजन का टूर्नामेंट हुआ था मेरे साथ। मतलब बहुत बुरा सीन हुआ। आई लिटरली वाज ऑन टू क्विट गेमिंग। मैंने स्टेप ले लिया था कि मैं गेमिंग क्विट करूंगा। आई डोंट वांट टू डू द कंटेंट क्रिएशन। नया नाम ही पढ़ूंगा मैं, बस ऐसी एक नॉर्मल, मुझे कोई जिंदगी नहीं चाहिए। इट वाज बिकॉज जिस दिन मेरा सब था टूर्नामेंट वगैरह आइजन का, मेरे एग्जाम्स करीब थे लेकिन अभी 2 महीने 3 महीने बाकी थे। So the thing 2 महीने बाकी थे। So the thing was that I was practicing first। मेरे अब मुझे पढ़ना था, सही है। मैंने पूरा हफ्ता पढ़ा था। उस दिन संडे था और संडे को मैं 12-1 बजे उठता हूँ नॉर्मली। मैं उठा और मैंने कहा चलो यार स्ट्रीम का सेटअप वगैरह कर लेते हैं, फिर मैं पढ़ लूँगा आराम से। मैं बैठा तो मेरा जो है ना पीसी का मसला हुआ कि स्ट्रीम लैब्स चल नहीं रहा और फोर्टनाइट भी थोड़ा मसले कर रहा। मैंने स्ट्रीम लैब्स अनइंस्टॉल किया, फोर्टनाइट को वेरिफिकेशन पे लगाया, स्ट्रीम लैब्स डाउनलोड किया, फिर उसकी सेटिंग करना है, उसके अंदर कमांड्स डालना, उसको यूट्यूब से लिंक करना, ट्विच से लिंक करना, सब जो है ना मैं करने बैठ गया। मुझे लगे 2-3 घंटे। मेरे अब्बा अम्मा बाहर चले गए थे। अब उन्होंने इतना कुछ उस वक्त बोला नहीं क्योंकि मैंने पूरा हफ्ता पढ़ा हुआ था।
अब मुझे बज गए 4, 6 बजे मेरा था इवेंट। हाँ 7 बजे इवेंट फोर्टनाइट था, का। 7 बजे इवेंट था। हम्म, अब तीन तीन समथिंग कुछ बज गए थे। अब मैंने कहा चलो यार 3 बज गए, मैंने कहा चलो थोड़ा सा फोर्टनाइट लगा के नहाने चले जाता हूँ और फिर मैं बैठ के पढ़ लूंगा, फिर डायरेक्ट टूर्नामेंट आऊंगा। मैं फोर्टनाइट खेलने बैठे, मैंने जोन वर्स के लिए एरिना खेला, बॉक्स फाइट्स करी, मुझे बज गए 5। सही है, 5 5:30 बजे। मैंने कहा चलो अब नहाने चलते हैं। नहाने गया, नहा के बाहर आया तो अम्मा अब्बा घर पे आ गए। अब मैंने कहा यार 6 साढ़े 6 तो ही बज गया। अब मैंने कहा यार वो काम, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज कुछ नहीं बोलेंगे, पूरा हफ्ता 2 3 हफ्ते से पढ़ते हुए आ रहा हूँ, दबा के पढ़ा है, कंप्यूटर भी उन्होंने ले लिया था, आज के लिए दिया है। मैंने कहा सही है चलो खेल लेते हैं। स्ट्रीम ऑन थी, 3 मिनट रह गए थे इवेंट स्टार्ट होने में। मैं बाहर गया था स्टिंग लेने, सिर्फ मतलब फ्रिज से स्टिंग लेने गया। सब खुशी से बैठे हुए थे, एकदम से मेरे ऊपर बात आ गई कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं और ये वो। और लिटरली मतलब ये सीन हुआ कि सब एक तरह से होता है ना कि चढ़ना आपके ऊपर, हम्म। तीनों एक साथ चढ़े, मेरी बहन, मेरे अब्बू, मेरी अम्मी। नहीं, ये और जो बहन बहन की सपोर्ट आ जाती है ना बीच में, फिर आप यार कुछ नहीं कर I सकते। don't want to talk about my sister and stuff, not even my parents, I don't want to mention them here. थिंक क्या यार सीन क्या मैं हुआ। ये नहीं कह रहा, आई डोंट वांट टू इंटरप्ट इन योर पर्सनल लाइफ, बट यहाँ पे यहाँ पे इन पाकिस्तान, जब आपकी सिबलिंग्स सिबलिंग्स ही आपके अगेंस्ट हो जाते हैं ना, तो फिर आपके पेरेंट्स को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाती कि जब तीनों चढ़ने लगे ना, आई वाज लाइक, है। बाय द वे मेरे कोई सिबलिंग्स नहीं है भाई, मैं अकेला हूँ। द सीन क्या हुआ कि जब सारा मसला वगैरह हुआ ना, तो आई एम सेंटी एज यूजुअल, तो मैं जरा रोने लगे, लाइक सेंटी है आंसू अपना गिरने लौंडा लगे। भाई, मैं मेरे जना, बहुत सेंटी है अपना लौंडा। मैं सेंटी क्यों हूँ, क्योंकि आई हैव बीन बुलीड अलॉट ऑन कंटेंट क्रिएशन, ऑन गेमिंग, और जो भी मैंने just चाहा, जो भी मैंने अपना पैशन बनाना चाहा, इवन कि अभी भी जो मेरी वो है इंस्पिरेशन, उसके भी ऊपर मैं बुली होता रहता हूँ, बट आई डोंट गिव अ डैम। सो थिंक क्या हुआ यार कि मैंने इसको भाई अभी एक दो बार बात सुन, मेरे एक दो बार मैंने इसको बुली किया है, ठीक है, मुझे भी पता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पोकीमैन के ऊपर मैंने मजाक किया है, ठीक है, लेकिन मैं अब नहीं करता, क्योंकि मुझे मुझे समझ आ गई है कि भाई क्या होता है इंस्पिरेशन, क्या होती है, क्या बोलना भाई चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। मैं लिटरली ठीक बंदे है। को मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पर, एंड मैं डरता भी नहीं उससे मेंशन करने से। एक बंदा नाम है जजलान खान, मेरा दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था। उसने मेरे पैशन पे बहुत बुरी बातें बोली, सही है, उसने मुझे डीमोटिवेट किया, और उसने मेरी भाई इंस्पिरेशन पे हेटर्स आर बहुत हेटर्स, हरकतें की। हेटर्स आर हेटर्स। लिटरली ब्रो, तुम बाढ़ में भी जाओगे ना, चाहे तुम डूब भी रहे होगे ना, मैं तुम्हें कभी हाथ भी नहीं दूंगा बचाने के लिए, सही है, तुम मर रहे होगे ना, मैं तुम्हें मरने दूंगा, लेकिन मुझे तुमसे अच्छा, हाथ मिलाने की जरूरत सीन नहीं ये है। है, देखो यार, मैंने उससे गिव व्यूअर्स लिटरली के लिए। किसी किसी अच्छा अच्छा, उसने मुझे पैशन बात पे सुनो। बोला, उसने हम्म, मेरे उस पे बोला इंस्पिरेशन पे, मैंने उससे बातचीत छोड़ दिया, लिटरली लाइक फैमिली पे। छोड़ो उसको। नहीं फैमिली पे नहीं बोला उसने, मैंने कहा छोड़ो इसको, दफा करो ये सब। अच्छा लेट मी कंटिन्यू माय टॉपिक। तो सीन क्या हम्म, था कि मैंने वो इवेंट मिस कर दिया, और मैं मेंटली काफ़ी, मेरी हालत ख़राब हो गई थी, सही है। मैं जब रो रहा था तो मुझे हंसी भी आ रही थी साथ। मैं अजीब सा हो रहा था, मैं फॉर हाफ एन आवर मैं अपने बाथरूम में अपना सर मारता रहा था दीवार पे हाँ, कि वो तो पागल हो गया था ये। why am I in such of this chaos and fuss in my mind, ठीक है। हम्म। तो उसके बाद मैं बाहर आया, मैंने अपनी केबल निकाली ऑन स्ट्रीम। जब मैं रोने लगा था ना, किसी को पता नहीं था माइक म्यूट था, मैंने अपनी बस पावर सप्लाई निकाल के बाहर फेंक दी थी, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने पावर सप्लाई निकाली, बाहर फेंक दिया। अब मैंने कहा भाई पीसी ले, जलाए, तोड़े, मुझे मारे इससे, मुझे इससे घर से बाहर फेंके, मुझे ही फेंकने के साथ बाहर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम डिसकंटिन्यूइंग गेमिंग, आई एम डिसकंटिन्यूइंग माय पैशन, मैं पढ़ूंगा भी नहीं, सही है। आप लोगों ने बस चलना बोला किया, मैं भी नहीं पढ़ रहा। और लिटरली मैं ना बिल्कुल लेट गया था अपने बेड पे, और मैं ना अपनी बहन से बात कर रहा था, ना मैं अपने मम्मी से बात कर रहा हूँ। मैंने अपने जाना, मेरी दोस्त की कॉल आई, रायान नाम है उसका, रायान असगर। तो मुझे बोलता है कि यार
तूने क्या फालतू बात कर रहा है, नहीं करनी ये वो सब है ना। मैंने अपनी इंस्टा रूक्स प्रोफाइल की भी बात हो रही है या तेरी किसकी बात हो? रायान उसके तुम नहीं जानते, मैं रहूँगा उससे, एब्स्ट्रैक्ट नाम है। सो अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट ओके। सीन ये हुआ कि मैं मैंने अपनी ना इंस्टा प्रोफाइल पूरी डिलीट कर दी थी। आई वाज लाइक इनएक्टिव। फिर मुझे बोलता है कि यार हाँ, मतलब बीच में हुई थी, मैंने बीच में हुई बोला थी। था यार जब कि जब हम इतने क्लोज नहीं थे, बीच में तुम्हारी प्रोफाइल डिलीट हुई थी, तो मैंने मेरे ख्याल से दूसरी प्रोफाइल पे तुम्हें मैसेज किया था एंड एक्सेट्रा। मैं पूछ रहा था क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो सीन तो ये उस हुआ टाइम कि पे हम लोग मतलब इतने क्लोज नहीं थे। हाँ बट फिर बाद में फिर हम मैंने इसकी, यार जो डिसकंटिन्यूइंग इसने की थी ना, उसके बाद ये क्लब में गेमिंग करता था। एक दिन हम लोग मिले, जून जून की बात है, जून आई गेस नहीं, हाँ इसकी बर्थडे से एक हफ्ते पहले की बात है, जून 20 और 21 ऐसी नो बात है। मे तो हम 21। मिले थे, हाँ मई सॉरी मई 21 की बात है। तो हम दोनों लाइक आपस में लाइक पता नहीं कैसे, एक्चुअली मुझे फर्स्ट पीसी पे आदत थी मैं बैठने की बताता हूँ क्या वहां। सीन था। ये ना किसी का गेम, ये खुद खेल रहा था और ये किसी का गेम प्ले देख रहा था। मैंने कहा मुझे पता चला ये ना अच्छा प्लेयर नहीं है, इसको नहीं आता खेलना। सो आई वाज लाइक यार क्यों ना मैं इसके साथ खेलूं, उसको सिखाऊं। और मैं ना मतलब इसके साथ प्ले कराऊं। लाइक यार मैं मतलब देखो, ऑलमोस्ट अगर मैं अपनी बात करूँ ना एक अब, साल बाद में ना हाँ क्लब में वापस आया था। तो मैंने इसको अपना दोस्त वोस्त बनाया, सब किया, फिर हम लोगों ने साथ खेलना शुरू किया सब। दैट्स हाउ इट वेंट। फिर अब जब मैंने अपना डिसकंटिन्यू वगैरह सब किया ना गेमिंग, तो मुझे वो बोलता है कि भाई तो जो करना है ना तू कर, वो तेरा ओपिनियन है। मैंने बस तुझे एक बात बोलूंगा, तेरा पैशन गेमिंग है। मैंने कहा तेरा पैशन यूट्यूब है। मैंने कहा कहते हैं जब तू बड़ा होगा ना, तुझे जॉब लग जाएगी, अच्छे खासे पैसे होंगे, अच्छी गाड़ी, बंगला उंगला सब होगा, बीवी बीवी सब होंगे, तू पेरेंट्स के पास होगा, तेरे पेरेंट्स खुश होंगे, तू खुश होगा, तेरी बीवी सब खुश होंगे, सब हर कोई खुश। लेकिन तुम अंदर से खुश होगे? मैंने कहा नहीं। कहने लगा अगर कल को तुम ऑफिस में बैठे हो, तुम्हारे बराबर में एक बंदा है, वो यूट्यूब करता है, वो गेमिंग करता है, और तुम उसको देख रहे हो सक्सेसफुल होते हुए, तुम्हारी क्या तुम जलेगी खुश होगे? कितनी, खुश तुम्हारी होगे? जलेगी कितनी। मैंने कहा नहीं। कहने लगा तू अपने आप को कोसेगा तो अपने आप को डंडे मारेगा, तुझे सुसाइडल थॉट्स आ जाएंगे। अब मैंने जो है ना लिटरली, मेरे समझे बकवास कर रहा है, उस दिन के 2 दिन जब गुजरे हैं ना, सबसे मुश्किल दिन थे मेरे लाइफ में। just don't want to talk about it। तो सब अच्छा, मैं एक सही बात था। बताता हूँ, जब इसने गेमिंग डिसकंटिन्यू की थी ना, तो फिर मुझे पता चला कि यार इसका पीसी वीसी इसने फेंक दिया है, ये वो, कि घर में नहीं खेलता। वो तो यार आपके पर्सनल बिहेवियर से ही पता चल जाता है। उस जब हम लोग मिले थे उसके बाद इसने बताया कि मेरे घर में पीसी है मैं जो है ना एंड अपने एक्सेट्रा। अपने स्कूल में मैं मतलब एक तरह से क्लास क्लाउन था। और उस दिन सेम के यार, बाद सेम से या सेम। उस दिन से अच्छा पहले भी मेरा जब स्कूल शुरू अच्छा, हुआ था, अगर उसके हम बाद अपनी से मैं अपनी काफी बात करें ना, अगर हम क्लब की बात करें ना गेमिंग जोन में, तो जब ये मुझसे मिला था ना, तब लाइक मुझे 3-4 लोग बहुत बुली करते थे, यू नो देम, जो अब हमारे क्लैन में खेल रहे हैं, जो वो पहले मेरे मुझे कहते साथ थे खेल रहे हैं। कि हमारे साथ खेल रहे हैं। अब वो जो पहले हमने एक, लाइक इसने जब डिसकंटिन्यू की थी ना, मैंने बोला नहीं भाई, तू आएगा CSGO में वापसी, ठीक है, तू क्लैन बना, तू इसको सेट कर, ठीक है। हमारी क्लैन थी, अभी तक हमारी क्लैन जो है, मतलब जो हमारी टीम एनार्किस्ट में है, उसमें भी हमारे पुराने प्लेयर्स हैं। हम्म, लाइक हमारी पहली जो क्लैन थी उसमें डेविल है, डेविल को तुम लोग जानते होगे, स्ट्रीम में देखा होगा। तो डेविल हमारे साथ पहली क्लैन में भी था और अब भी है, ठीक है। तो मैंने इसको छोड़ दिया था, मैंने इसके ऊपर छोड़ दिया था। मैंने बोला यार, क्योंकि इसने जब मुझसे एक बात कही ना, इसने बोला यार कहने दे इनको नूब, ठीक है, इनको बोल, इसको बोल के भाई तू नूब बोल मुझे। हम्म, जो इसकी बात मुझे पसंद आई ना, इसने बोला ये लोग भी तो कंप्यूटर लेके पैदा तो नहीं हुए थे ना, इन्होंने भी तो सीखा है, तू भी सीखेगा। ये बात मुझे आज तक किसी ने नहीं की थी, सिर्फ इसने कही, और मैं इस बात से इंस्पायर हुआ, और आज तक मैं इसका दोस्त हूँ, और आज तक मैं इसको मानता हूँ इस बात। जो भी ये देख रहे हैं, जो जो बुली होता है इस कहने पे कि यार तुम नूब हो, तुम्हें खेलना नहीं आता, ना हो, बोलो हाँ मैं हूं नूब, ठीक है। तुम भी पीसी लेके पैदा नहीं हुए थे। तुम्हारे मेरे 140 आवर्स हैं, तुम्हारे 2500 आवर्स हैं। मेरे भी जब 2500 आवर्स होंगे ना, मैं तुमसे बेहतर खेलूंगा। ये बोलना है तुम्हें, वो उसको, जो भी तुम्हें ये कह रहा है। ग्राइंड मैं ग्राइंड करना यार, तुम्हारा काम है, उस पे काम करना तुम्हारा काम है, सही है। चैलेंज तुम प्रैक्टिस तुम करो ना, अगर तुम चैलेंज तुम्हें कोई प्रैक्टिस दे रहा करो। है ना, तो चैलेंज एक्सेप्ट करने से डरो नहीं।
तो बोला हाँ सही है। हाँ बस लेकिन बस। उस अब चैलेंज तुम को देखो, ऐसा एक्सेप्ट मुझे करो चैलेंज कि दिया था, मुझे चैलेंज दिया था। तुम जानते हो हमारे साथ नेस्टी खेलता है, हमारे साथ फैंटेसी खेलता है। ये पहले मेरे अगेंस्ट खेल चुके हैं, जो मेरी क्लैन के अगेंस्ट खेला है, हम दोनों के इन्होंने अगेंस्ट खेला है। जब एक बारी आई ना, इनके क्लैन वालों ने इनको ही निकाल दिया, ठीक है, को बोला तुम नॉन सीरियस प्लेयर्स हो, तुम लोग दफा हो जाओ। फिर हमने इनको इन पॉइंट किया, और अब फैंटेसी का गेम कैसा है देख लो। बहुत अच्छा है, improved a lot। तो इस सब के बाद जब आइजन वगैरह का सब सीन हुआ, so my mom doesn't know this nor my father, but I'm just saying this, अगर आप देख रहे हैं sorry for this। एक हफ्ता हो गया था इस बात को, और आईजन वालों ने अनाउंस किया कि आपका जो लोग ग्रुप बी, मैं ग्रुप बी में था, नहीं खेल पाए, वो ग्रुप एक हम स्पेसिफिक ग्रुप बना रहे हैं, उसमें खेल सकते हैं। यार मेरा क्या फ़ायदा है। और लिटरली उस दिन फ्राइडे को मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, उसने कहा आ जाओ और हम वहाँ से आइजन चलेंगे, तुम्हें जो करना है ना वो तुम करना। आई वाज लाइक सो प्राउड कि यार मुझे कोई सपोर्ट करने वाला है, लिटरली लाइक मेरे पैशन को कोई सपोर्ट करने वाला है यहाँ पर बंदा था ना, एक्चुअली वो नहीं यार है। देखो, तुम्हें पता है कि मैंने भी तुम्हें हमेशा सपोर्ट किया। देखो, मैंने मैंने जब जब ये टाइम्स था ना, जब ऐसे टाइम्स थे कि इसके दोस्त इसको खुद बुली करते थे, बोलते थे कि यार क्या कर रहा है तू, तेरे लिए हम टाइम निकाल रहे हैं, लेकिन तो हम वो, देखो वो तफरियां करते थे, ठीक है, वो कंटेंट क्रिएट नहीं होने देते थे। ये डिप्रेस्ड हो जाता था, ये मुझे कॉल करता था, बोलता था यार बस यार, बस छोड़ रहा हूँ मैं, छोड़ो यार, खत्म करो, जो किया था वो सब मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये कर। नहीं, मैंने उसके बाद बोला नहीं, तू करेगा, ठीक है, तू करेगा और तू और करेगा, जब तक नहीं रीच होता तेरा गोल, तू ट्राई करता रहेगा, तू ट्राइंग नहीं छोड़ेगा। मैंने उसको ये बात बोली थी, मैं बोला था मैं साथ हूँ तेरे, चाहे कोई और हो ना हो। अभी इसका पहले, अच्छा, एक्स वाई डी वासे भी ये देखेगा, ठीक है, एक्स वाई डी वासे, आई एम सॉरी यार, ठीक है, एक्स वाई डी वासे से इसका पड्डा हुआ। मैं बोला इसने किया क्या है, मुझे सच सच बता। मैं खुद के फटा हूँ एक्स वाई डी वासे पे। तो उसको बोला है तू बोल कैसे सकता है इसको, ठीक है, एक्स वाई डी वासे सॉरी यार अगर तू देख रहा है, ठीक है, लेकिन मैं बोला यार मैं हूँ तेरे साथ सपोर्ट करने के लिए। उस टाइम पे जैक्सन और स्पार्टा वगैरह सब सब थे उस वक्त, चाहे वो तुझे सपोर्ट कर रहे थे, चाहे वो एक्स वाई डी वासे को सपोर्ट कर रहे थे। मैं बोला अगर तू भी गलत है ना, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तुझे, मैं हूँ साथ तेरे, बस। तो मैंने उनको मतलब बोल दिया। उसने बोला कि आ जाओ है ना, घर पे आ जाओ, और फिर जो है ना हम वहां से गेमिंग जोन चलते हैं, आईजन के ही गेमिंग जोन चलते हैं। पैसे पड़े 144 हर्ट्ज पे तू खेलेगा 240 एफपीएस। मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई, मैंने कहा यार चलो सही है, करते हैं। मैं उसके हाँ ये घर आया गया, था, उस टाइम पे मैं 240 पे CS खेल रहा था, याद है मुझे। मैं उसके घर गया, हमने वहां से रिक्शा पकड़ा, स्नीक लेवल 1000 करके मैं आइजन पहुंचा, वहां मैंने लिया आर, 3 घंटे का आर लिया, वहां पे 5 मिनट क्रिएटिव के कस्टम लगा। पहला गेम तुम्हारा भाई जो पॉप ऑफ किया है, टॉप 25 पॉइंट लेके 3 किल लेके हमारे भाई मर गया, लेकिन 4 पॉइंट्स बन गए। पहले गेम में हाई टॉप टॉप 2 चल रहा था, टॉप 3। उसके बाद जो दूसरा गेम वो ऑफस्पॉन मर गया, सही है, 30 कंट्रोलर L2 स्प्रे हो गया था मैं। जो तीसरा गेम था ना, चौथा गेम मिलकर, तीसरे गेम में मैं टॉप 25 लेके मरा था। तीसरे गेम में मेरा डुओ बैटसी मेरे साथ खेल रहा था, वो एक साइड पे था, वो मर गया। मैं टॉप 25 लिया, मैंने टॉप 15 लिया, मैंने टॉप 15 में 4 किल मारे। हैमर द ग्रेट जो है, वो जो अभी आई थिंक आईजन में है, उसको मारा। उसको मारने के बाद जग्गू टॉप प्लेयर था उस वक्त, हंसी, वैनम, फिर जग्गू था, वो लोग चल रहे थे। उस बस मसला ये हुआ कि फिश का जो है ना ग्लिच हो गया, मैंने फिश का 0.1 पे कैंसिल हो गया मुझसे, मैं मर गया। अराउंड इस वक्त मेरे हो गए थे 19 पॉइंट्स, और क्वालिफाइंग के स्विश, लिए वो तुम उसकी फ्लॉप बात है, कर रहे हो फ्लॉप ना, है, फ्लॉप है। एस के का जो जग्गू है, आई एम नॉट, एस मुझे के पता है जग्गू, नहीं, मुझे पता एस नहीं के है। जग्गू और हसीब HSB। नहीं 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 नहीं, तो वो कोई और है, तुम नहीं जानते। सो हुआ नहीं, ये कि मैं जग्गू को जानता हूँ। जग्गू को जानते लेकिन एचएसबी को नहीं जानते। तो मैं जो है ना फिश खा रहा था, 0.1 में कैंसिल हो गई। अब वहां क्या हुआ कि क्वालिफाइंग के लिए आपको चाहिए थे 16 टू 17 पॉइंट्स, मैंने बना लिए थे 19 पॉइंट्स। रह गया था लास्ट गेम, अगले गेम में मैंने इजी टॉप 25 लेके एक किल करके मर गया, मेरे हो गए थे 23-24 पॉइंट्स। सबमिशन में मैं पिक्चर लेके भेजी थी, सिर्फ एक दो पिक्चर चाहिए थी क्योंकि मैं गेम जोन में बैठा हुआ था,
मेरा फोन था, चार्जिंग कम थी, टेंशन थी पकड़ा गया अगर तो क्या होगा, ये वो मारेंगे दबा के, अलग टेंशन थी। लेकिन मैंने पिक्चर लेके सेंड की, टूर्नामेंट ओवर हुआ, रिजल्ट जब आया तो मेरे सिर्फ 8 पॉइंट्स लिखे हुए थे। मैंने कहा मैंने कॉल किया मैनेजमेंट का, मैंने कहा ब्रो ये सब मसला है, आप चेक करो, मैं आपको रिप्लाई मोड से भेजता हूँ। इत्तेफाक से मैंने मसला ये होता है मेरे पास पीसी नहीं था, मैंने बैटसी को बोला कि मेरा अकाउंट लॉगिन कर, रिप्ले में जा और देख मैंने मैचेस, कह रहे थे मैचेस नहीं आ रहे। मैंने कहा दिखाओ वीडियो पे, उसने दिखाया तो सही में नहीं आ रहे। तो मैंने कहा सर मैचेस की नहीं आ रहे, आपने स्ट्रीम की थी? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा आप स्ट्रीम पे से देख सकते हैं प्लीज़, या आपके पास भी रिप्ले? मैंने कहा मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, लिटरली उसने मुझे मुंह पे ये बोला। मैंने कहा चढ़ेगा कोई बात नहीं। मैंने दूसरे मैनेजमेंट हेड को बोला, उसने भी यही कहा। मुझे चढ़ गया गुस्सा, मैंने इतनी गंदी सुनाई है आईजेन के ओनर जो वहाँ पर बैठा था, जो कमेंट्री कर रहा था, उसको सुनाई, उसके दोनों मॉडरेटर्स को सुनाई, बहुत गंदी। पहले किक पड़ा, मैंने वापस इनवाइट मांगी, वापस नहीं, मुझे बैन कर दिया आईजेन के डिस्कॉर्ड से। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं होता है, मैंने छोड़ दिया उधर। उस दिन के बाद से मैं ऑलमोस्ट 3 महीने सिर्फ 3 घंटे की नींद लेके सोया हूँ। स्कूल डेज में पूरी पूरी रात जाके गेमिंग की, कंटेंट क्रिएशन को एक किया, अपनी मेहनत को एक लाया हूँ, और आज जाके एक पॉइंट पे एक महीने के अंदर 20 कितने मैं खुद भूल गया, 28,000 नहीं, 20,000 नहीं, 2,778 व्यूज एक महीने के अंदर, विद ऑलमोस्ट 114 सब्सक्राइबर्स गेन करके मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। फखर की बात है काफी, लेकिन अभी बस शुरुआत है, लेकिन स्टार्टिंग है, एंड तक अच्छा अच्छा, जाना है। हम अगर एक टॉपिक पे आए जो हमें, क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया है ये टॉपिक हमारा, हम्म, बट अगर हम करियर की बात करें पाकिस्तान में गेमिंग की, अगर देखो सेनपाई कर कर रहा है, वो अपनी पोटेंशियल कर रहा है, 114 सब्सक्राइबर्स इन 1 मंथ गेन किए उसने, ठीक है, 2700 व्यूज एक मंथ में, एवरेज यूट्यूबर, बहुत है, बहुत है, फ्रॉम माय साइड बहुत है, ठीक है, मेहनत कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है। लेकिन अब करियर की बात करें, जिनका करियर बन चुका है पाकिस्तान में, और वो इस ये पबजी एंड एक्सेट्रा गेम्स की वजह से बैन हो रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ बात पबजी की नहीं कर रहे, हम ये ऑल यहाँ पे ओवर हम बात कर रहे हैं ऑल ओवर ऑल ओवर ई स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। देखो यार, कंट्री होती है, एक कंट्री होती है, वो गेम्स बना रही है, अब चाइना है, ठीक है, उसने पबजी बनाया है, तो वहाँ पे दूसरे गेम्स भी तो है ना, दूसरे गेम्स भी तो वो पाकिस्तान में ला रहे हैं। अब उन गेम्स के ऊपर इंप्रेशन क्या पड़ेगा यार, पबजी बैन कर रही है तो हमारा भी गेम बैन कर देंगे, तो इससे अच्छा हम पहले ही एक्सेस हटा लें। तो देखो, एक इम्प्रेशन बनानी होती है अपने हर लाइफ के सब्जेक्ट पे, कि यार इस कंट्री की क्या इंप्रेशन है, इस कंट्री से हमें क्या मिल रहा है, इस कंट्री से हमारा क्या हो रहा है, हमारे कंट्री के कितने कितने हमारे जो है वो जो है पबजी प्लेयर्स निकल रहे हैं इस कंट्री से, कितने CSGO के प्लेयर्स निकल रहे हैं, कितने डोटा के प्लेयर्स निकल रहे हैं। अब हमारे डोटा को शायद तुम जानते नहीं होगे, लेकिन हमारा एक डोटा प्लेयर है जो नंबर 1 माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, क्या नाम है उसका? सुमेल, सुमेल। सुमेल, सुमेल फिलहाल अभी नाम है वो उसका। न्यूयॉर्क में रह रहा है, इधर हाँ, इस्लामाबाद का। न्यूयॉर्क में रह रहा है, इस्लामाबाद का। क्योंकि यार इस्लामाबाद का है, लेकिन वो न्यूयॉर्क में इसलिए रह रहा है क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे उसको नहीं मिलेगा कुछ भी। वो न्यूयॉर्क में इसलिए रह रहा है क्योंकि वो नाम कमा चुका और है, वो न्यूयॉर्क उसको अपने पता है। पैसों पे गए, अपनी फैमिली को लेके, एक तरह से आई वुड से दैट, लाइक लिटरली दिख रहा है यार, बंदे इतने सारे डॉलर जीता है, और क्या चाहिए। यार डॉलर की बात ही नहीं है, उसके अंदर टैलेंट है, उस बंदे ने नंबर 1 पोजीशन फालतू में ले लिया। अभी आप उसका नाम गूगल पे सर्च कर लो, बोलो डोटा 2 टॉप 10 प्लेयर्स, उसका नंबर 1 पे नाम आ रहा होगा सुमेल, अगर आप चेक करो। बाकी हमारे यहाँ बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी हैं, जैसे HSB को काफी देख लो, और काफी प्लेयर्स अंडररेटेड भी हैं जिनको रेटेड होने की जरूरत है, और आप लोग कम्युनिटी का हमारे एक पास काम है, जो लोग कंटेंट क्रिएशन नहीं कर पा रहे लेकिन सपोर्ट करते हैं, आपका एक काम है, आप उन अंडररेटेड प्लेयर्स को रेटेड लाओ, दबा के प्रमोट करो, उन लोगों को प्रमोट करो, उनको खुशी दिलाओ। जब तक वो लोग, अभी पता है इवन के डकी भाई अभी तक ऑफ कैमरा डीमोटिवेट फील करता होगा, आई कैन से दैट, चाहे उसके अभी 21 जितने भी के सब्सक्राइबर डीमोटिवेट फील करता होगा, जब तक वो अपने टारगेट तक 1.81 मिलियन है। हाँ 1.81 मिलियन, जब तक जो भी उसका स्कोप होगा, जब तक वो वहां तक रीच नहीं कर जाता, तब तक वो डिमोटिवेट सा या बहुत अजीब सा असल फील में करता यार, होगा।
असल में पाकिस्तान में ये सीन है कि अब तुम एक बात बताओ, डकी भाई क्यों 1.81 मिलियन पे, जबकि उसका कंटेंट जो है बिल्कुल जो है कैरी मिनाटी से मिलता है, जबकि कैरी मिनाटी के 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पे, अब इंडिया तुम इंडिया की बात कम्युनिटी करो, बहुत स्ट्रांग है, इंडिया की गेमिंग कम्युनिटी बहुत इंडिया की स्ट्रांग है। कम्युनिटी तो है स्ट्रांग, लेकिन अगर आप बात करो डकी भाई के 1.81 मिलियन क्यों है, क्योंकि पहले पाकिस्तान में यूट्यूब बैन कर दिया था। बीच में यूट्यूब बैन नहीं किया, कितने बीच में महीने यूट्यूब बैन हो बहुत गया था। लंबा बैन पड़ा था। 2008 में बैन हुआ था, 2008 में बैन हुआ था। हाँ और 2008 से लेकर तकरीबन बहुत सारे टाइम पे ऐसे पाकिस्तान में यूट्यूब चला था, प्रॉक्सी लगा के चल रहा था यूट्यूब। प्रॉक्सी 1 2 3 4 उसमें क्या यूट्यूब, प्रॉक्सी। उसमें क्या बंदा देखेगा? पाकिस्तानी अवाम तो ये बोलेगी यार इससे अच्छा डेली मोशन देख ले हम लोग, और एक बात यूट्यूब बताऊं, को छोड़ो। वो वैसे ऑफ टॉपिक बात है ना, मैं अभी इसको डिस्कस कर रहा हूँ, वो भी बहुत फालतू बैन था, उसको भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, और उसके मैं फुल प्रूफ के साथ बोल सकता हूँ कि काफी फालतू बैन था वो। यार फालतू बैन की बात नहीं कर रहा मैं अभी बैन की बात कर रहा हूँ, खाली बैन की बात कर रहा हूँ। अगर हमारे यहाँ यूट्यूब बैन नहीं होता ना, तो जो हमारे हाई लेवल कंटेंट क्रिएटर्स है ना, जो हमारे रोस्टर्स हैं, खुजली फिल्म्स हो गया, डकी भाई हो गया, तो इनके भी जो सब्सक्राइबर्स है ना, वो इंडिया जैसे होते हैं। हम्म, इनके भी सब्सक्राइबर्स अभी 14 या 15 मिलियन तो होते ही होते, होते ही होते, राइट। बिकॉज ये तब से कंटेंट बनाते आ रहे होते ना, तो तब से लेकर आज तक इनके सब्सक्राइबर्स नहीं, आप बयान भी नहीं कर सकते कितने होते, बिकॉज यू नो क्या उसका कंटेंट कैसा है। चलो, एज दी टॉपिक एंड्स, आई जस्ट वांट टू से कि जितनी भी हमारी गेमिंग कम्युनिटी है, डू सपोर्ट हाँ एवरीवन, यार, डू अगर सपोर्ट मी। हम शाउट आउट देना चाहे ना, हमें शाउट आउट देना चाहिए, ठीक है, हमारी गेमिंग कम्युनिटी को। आईजन गेमिंग बहुत बहुत कर रही है गेमिंग के लिए पाकिस्तान में। पाकिस्तान की ई स्पोर्ट्स एक एकेडमी है कराची में, जिसको ओन कर रहा है एक बंदा, वो प्रोफेशनल डिग्रीज पे, गेमिंग की डिग्रीज पे वो गेमिंग सिखा रहे हैं, ठीक है। तीसरी अगर बात की जाए, हमारी गेमिंग हब ऑरेंज ई स्पोर्ट्स जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान की गेमिंग कम्युनिटी को इम्प्रूव करने में। हम बात करें लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अरसलान ऐश, लेजेंड लेजेंड ऑफ जिसने टेकन, वर्ल्ड पाकिस्तान चैंपियन का नाम कुछ ज्यादा ही ऊपर कर दिया था इन गेमिंग सेंस, पाकिस्तान। अच्छा, हम अगर बात करें, अगर लास्ट 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 टॉपिक करते हैं, बिल्कुल लास्ट। हमारी जो पाकिस्तान की सीएसगो की कम्युनिटी है, ठीक है, पाकिस्तानी सीएसगो जो कम्युनिटी है, ठीक है, उसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं। लाइक आप सोच भी नहीं सकते, अगर आप जाके यूट्यूब पे लिखो ना, इतने व्यूज नहीं होंगे उस वीडियोस पे। उस वीडियो पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है गेम प्ले की, किसी अननोन चैनल ने, मुझे नाम याद नहीं है, बट उसने पूरे बताया है कि पाकिस्तान के एक मुल्क कराची में कितने जो है वो प्लेयर्स हैं सीएसगो के, आई सीन जो दैट वीडियो। टैलेंट्स हैं। आप उसमें क्रिमिनल है, उसमें कर्नल है, उसमें जवार है, उसमें एचएसबी है, उसमें ट्रांस है, उसमें वन ऑफ द बेस्ट ऑफर्स मुसब है, उसमें सोल एमेट है, उसमें आइडेंटिकल है, उसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो आप सोच भी नहीं सकते उनका गेम प्ले कैसा है। अच्छा, हमारे यहाँ अचीवमेंट्स भी बहुत हैं हमारे यहाँ। सिर्फ अब आप लास्ट टॉपिक अगर आप बात करो ना, तो आप बात कर लो पोकेमोन की। साथ पोकेमोन 7 पोकेमोन, सीएसगो एक प्लेयर है आईजन के जिसने लिए ईएसएल में खेला है, जिसने, नहीं आइजन का नहीं है वो, आईजन आईजन में था, आई डोंट नो, आईजन में था वो। मेरे ख्याल आई से सी द आइजन के लिए पोस्ट ऑन प्रमोशन आईजन प्रमोटिंग हिम, आई थिंक। प्रमोटिंग, हाँ वो क्योंकि प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि वो ईएसएल में खेल चुका है, Yep. ईएसएल के क्वालिफायर्स में खेला है वो ईएसएल में। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ईएसएल इंडिया में है, ईएसएल इंडिया प्रीमियरशिप है, तो पाकिस्तान में ईएसएल क्यों नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता भाई? मसला ये है यार कि जब आप हमारी जब आप सोसाइटी जब कम्युनिटी आप सपोर्ट ही नहीं नहीं करती जब भाई। आप नहीं नहीं सपोर्ट की बात नहीं भाई है। जब तक जब नहीं, आप मतलब क्रिप्टो आप करेंसी आने ही बैन नहीं कर दे रहे दोगे, ना। हाँ। जब आप क्रिप्टो करेंसी बैन कर दोगे, जब आप पेपाल यहाँ बैन कर दोगे, पेपैल यहाँ पे पेपैल लोगों को, बैन की बात नहीं है। यहाँ पे पेपैल यहाँ क्यों नहीं है भाई? करप्शन इतनी है इस कंट्री में, करप्शन इतनी है भाई, जब पेपैल है ही नहीं। यार मैं इतने अमेजोन तरीकों से नहीं है मेरे पास, यहाँ, मैं यार यहाँ लिटरली ऑन अमेजोन ऑन नहीं स्क्रीन है। बोल रहा हूँ, मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा, सही में ऑन स्क्रीन बोल रहा हूँ, मेरे मुझे पैसे रिसीव होने थे बहुत टाइम पहले, डॉलर्स, सही है। पेपैल नहीं है पाकिस्तान में, मेरे फंड्स फंसे हुए। पेपैल में नहीं फंसे हुए, उस बंदे के पास है,
लेकिन वो तब किसी को दे, अब मैं बाहर अगर अपने खाला वगैरह किसी को दूं उनके पास जाएंगे, तो जब वो मुझे भेजेंगे, एक तो जाने के टैक्स वहां से कटा, फिर वो मुझे भेजेंगे उसका टैक्स, और अबे मिलेंगे क्या, 10 रुपए मिलेंगे, सही बात है भाई। टॉफी खरीदूं जाके मैं उसकी। अच्छा मुझे ना, मैंने जो है उनकी साइट्स, अब तुम विजिट करो। हम जब खुद देख रहे थे कि TKL प्रो भाई कितने का आएगा हमारे यहाँ, ठीक है, हाँ, हमने बोला यार पाकिस्तान में मंगाने से तो बेहतर है आप जाओ जाके कनाडा से बाय वहीं करके से ले लो। पाकिस्तान ले आओ। हम्म, ठीक है, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप ब्रीफकेस में उठा के ले आओगे यार, क्या हो गया, नहीं टैक्स कोई पे करना पड़ता इतना है। भारी तो नहीं होता है। हम्म, टैक्स पे करना पड़ता है, वही ड्यूटी आपकी इतनी होती है, ड्यूटी आपको पे करनी पड़ती है इतनी। कहा था कभी, ये जो भी हमने सारी बात की, इन दी एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने पैशन को पहन लो अपने ऊपर, सही है, तो मैं चाहे ठीक है, किसी का बाप भी रोक रहा हो ना, यू डोंट हैव टू स्टॉप, ओके, यू हैव टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, एंड इफ यू कैन डू इट विद ऑल यार ऑनेस्टी एंड हम विद आपको नहीं होल कह रहे, हार्ट। हम आपको फोर्स नहीं कर रहे कि यार फोर्स बस नहीं, नहीं किसी मुबशिर, और चीज मुबशिर में। फोर्स नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो भी नहीं आप नहीं नहीं, करना मैं चाहते हो, मैं कुछ गेमिंग और बात करना कर रहा हूँ, चाहते मेरी हो बात आप समझो। गेमिंग पे फोकस करो, आप कुछ और अच्छा, करना चाहते हो आप उस पे फोकस करके हाँ करो, हाँ, देखो छोड़ना देखो नहीं, हम ये नहीं मेरी कह तरह रहे, जाहिल नहीं बनना, हम, डिमोटिवेट करना शुरू हो जाए, डिमोटिवेशन अपने ऊपर अच्छा लेना। देखो बात सुनो, हम हम यहाँ बैठे हैं ओवरऑल टॉपिक के ऊपर बात करने के कि क्या चल रहा है, ठीक है। अब देखो, हम ये नहीं कह रहे कि यार सारी चीजें खराब है, फुटबॉल में, क्रिकेट में, हॉकी में सब पर्चियां चल रही हैं, तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, तुम बैठ जाओ आके घर में बैठ जाओ, ई स्पोर्ट्स बस, और ये जो है ई कॉमर्स करो बस। यार तुम्हारा पैशन फुटबॉल में है, तुम अच्छी से अच्छी एकेडमी ज्वाइन करो, ठीक है, लेकिन अपने चांसेस वहां देखो जो कंट्रीज तुम्हें बाहर लेके जा रही हैं, हम्म, जो क्लब्स तुम्हें बाहर खिलाना चाह रहे हैं। सबसे पहले, अच्छा मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर कोई फुटबॉल का फैन देख रहा है ये, ठीक है, फुटबॉल में तुम जा सकते हो, कराची यूनाइटेड जा सकते हो इजीली, वो तुम्हें मुबशिर ये टॉपिक कहीं और इंटरनेट, जा रहे, छोड़ दे बस, एंड करना था ना, तू कहाँ लेके चले आता है बातों को, जी कहानी यार से ना देख रहे रहे, हैं, छोड़ दे ना अभी, कहानी तो कहानी है। छोड़ना। आपको जो करना है आप दिल लगा के करो, सही है, whatever you want to करो do करो do it with your भाई, whole जो heart, करना है करो, जो don't करना है never करो। never give up, okay, never give up, और अपने पेरेंट्स को आपको समझाओ। ई स्पोर्ट्स करना है आप ई स्पोर्ट्स करो, आपको ई कॉमर्स पे बिजनेस करना है आप ई कॉमर्स पे बिजनेस करो, आपको फुटबॉल खेलना है, स्पोर्ट्स में इंक्लूड होना है, आपको जो करना है करो, लेकिन गो फॉर द अपॉर्चुनिटी। और आपको जो भी आप चाहते हो वो करो, अपने पेरेंट्स को समझाओ, एक टाइम आएगा फुल पिस्ड ऑफ हो जाओगे, लेकिन just control your anger, patience, I regret, यार वो आपको loving all the बोले ना, problems. वो आपको बोले, अच्छा आपको वो कंपेयर करें ना दूसरे से, आप वो बोलेंगे यार तुम्हारे पास तो मेहरान होगी, वो करोला में घूम रहा होगा, बोलो यार मुझे मेहरान पसंद है बस। भाई आप एक जवाब याद रखना, मैं अगर इवन अगर मैं बिल गेट्स के लेवल पे आ जाऊंगा ना, जो मैं नहीं चाहता उससे, तो मैं तब भी खुश नहीं होऊंगा, मैं जिस जिस चीज से चाह के कुछ बनूंगा ना, मैं उससे खुश होऊंगा। आगे की जनरेशन में अभी से प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, आगे की जो पूरी जनरेशन जो आ रही है ना, nobody gives a damn about being an engineer or doctor maybe, but nobody gives a damn about being an engineer or something, पूरी जनरेशन रिपोर्ट्स पे चली जाएगी, सब वर्चुअल हो रहा होगा, और इवन के गेमिंग वुड बी द नंबर एक्चुअली हाँ, वन, मैं भी यही कह रहा हूँ, नंबर मैं नंबर भी यही कह वन रहा हूँ, मैं भी एज इन फ्यूचर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरा नंबर तो वन ब्रांच पैशन फॉर है। द होल वर्ल्ड, गेमर्स अच्छा की मेरा तादाद पैशन, बढ़ जाएगी, और हर बंदा बोलेगा यार हाँ गेमिंग करना, और लोग इवन गेमिंग जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, अब तो सिर्फ टीम्स है ना, एनर्जी हो गई, लिक्विड हो गई, आपकी इन्वेस्ट हो गई, क्लाउड नाइन हो गई, या आप 100 थीव्स ले लो, या आप फेज ले लो बड़ी, अभी तो सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, कुछ आगे कंपनीज बन जाएंगी जो ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्रोवाइड करेंगी भाई, आगे बहुत चीजें होने वाली है, तुम लोग को बस पेशेंस पेशेंट रखना है। with the last part right now, which is harassment and bullying in gaming community. uh, ये गेमिंग का ओवरऑल गेमिंग कम्युनिटी की बात हो रही है, नॉट इन इन पाकिस्तान, सही है। हम्म, रिसेंटली एक टीम है नेम ऑफ कंटेंट ग्रुप ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स नेम ऑफलाइन टीवी, आई एम जस्ट प्रमोटिंग देम, सो नॉलेज हो लोगों को, जो मेरा ड्रीम है जाने के लिए, जहाँ मैं चाहता हूँ कि मैं एक पार्ट बनूँ उनका, उनके साथ एक कंटेंट क्रिएशन का काम करूँ, इट्स लाइक इट्स माय ड्रीम, इट्स माय व्हाट आई वांट टू डू। One recently एक scene was, there's a well-known YouTuber named Fedmeister. Please don't provide an hate. Meister Fedmeister था,
he had some mentally issues. He was drunk. He didn't do anything like rape or something, but there was some harassment stuff. जिसकी वजह से वो किक हो गया. I don't want to discuss the whole point. जिसकी वजह से वो अपने टीवी से किक हो गया और अब इवन के पाकिस्तान में भी यही हो रहा है. कम हो रहा है ज़्यादा मतलब ऑन harassment नहीं हो रही but it's like अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं लड़के लड़कियां दोनों. फीमेल गेमर्स जो है लड़कियां भी ज्यादातर. फीमेल गेमर्स जो है जो आई हैं गेमिंग कंटेंट क्रिएशन में जिनका लोग कोई एक्सपेक्ट नहीं करते लेकिन इट्स लाइक ग्रोइंग डे बाय डे as I see. I also have one of my friends her name is Tsuki however you pronounce it. Her name is Fiza. Right now she is in Claw Fortnite game. I hope you all know. वो वहाँ है लिटरली लाइक मैं जब से मैं उससे मिला था दैट डे आई हैव बीन वाचिंग हर. मैं सिर्फ जो है ना उसको मतलब ऐसे मैंने उसको लिटरली बस ऐसे 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 देखा है. फिर ये मैंने कभी नहीं रुक गया नीचे. एंड आई लाइक दैट. मैं चाहता हूँ कि सब सारे लड़के लड़कियाँ ऐसी जाए. सो प्रॉब्लम कहाँ आई कि यार आप देखो लड़कियों को जो है ना हमें आगे बढ़ने देना है. ये जो मेरी दोस्त है मेट है आई वुड लाइक टू से जो इतने सक्सेसफुल लैडर पे चढ़ती हुई गई है ऊपर उसकी तरह सबको बनना चाहिए. सही है. यहाँ पर क्या होता है कि अगर कल को कोई लड़की गेम में गेल आ जाती तो लड़के छिछोरा पना शुरू कर देते हैं वहाँ अपना. भाई देखो यार आप हाँ, अपने आप को कंट्रोल आप में जाके रखो. यूट्यूब पे वीडियोस देख लो. आप बोलो पाकिस्तानी गर्ल प्ले CS:GO, वो बोलते हैं यार क्या मतलब उस पे व्यूज ऐसे आ रहे होते हैं और नीचे आप कमेंट सेक्शन जाके पढ़ो. बस छोड़ दो, छिछोरे फिर आगे बात ही नहीं करनी. कैन यू प्ले विथ मी. आई विल ऐड यू. प्लीज प्ले विथ मी मैं प्लीज. आपको व्हाट इज योर यार इंस्टाग्राम. लिटरली व्हाट मैंने इज योर कमेंट सेक्शन में स्नैपचैट. ये पढ़ा है. आंसर दिस मैंने आंसर कमेंट दैट. सेक्शन में ये चीज भी पढ़ी है कि मैं आपको नहीं नहीं नाइफ नहीं गिफ्ट करूंगा अगर आप मेरे साथ खेलेंगे. हाँ यार आप चेक करो. अच्छा, सीन ये कि वो स्टीम आईडी उन्होंने छोड़ी भी अपनी और उनकी इन्वेंटरी आप जाके देखो, कुछ भी नहीं. कुछ भी खाली नहीं, भाई. खाली. हम तो अरे कुछ एक अच्छी स्किन ही रख ले भाई कि शो ऑफ हो जाए कि भाई तू नाइफ दिला सकता है. नहीं हमें भाई. भाई 3-3 अ- सेंट की स्किनें पड़ी हुई हैं वेरी के आमो वही जो वगैरह. ड्रॉप होती है यार, हाँ कैजुअल गेम खेल के ड्रॉप जो होती है. अब तो we see them like climbing the thing ladders and stuff. They get they feel uncomfortable जिसकी वजह से लड़कों को तो समझ नहीं आता उनके साथ like how do they feel but some you'll get to know that they are feeling bad and stuff जिसकी वजह से दूसरे को भी बुरा लगता है और उनकी जो है ना encouragement कम हो जाती है towards what they are trying to do. उनका मोटिवेशन की नीड होती है. किसी बंदे को भी इस लेवल पे ना लो कि उसको इतनी मोटिवेशन की नीड हो कि वो रातों में रो रहा हो यार या 24 घंटे रो रहा हो. हाँ, सही है. You guys can go there, follow me, and also donate me. Everything else mentioned over there. इधर मैंने अपना हाँ, थोड़ा स्क्रिल बताया अकाउंट है इसका, उस पर मैंने अपना डोनेट करो. थोड़ा सब ड्रीम सब के बारे जाके में डोनेट बताया करो. थोड़ा अपना
पता है कि मैं किस चीज़ों के थ्रू गया हूँ. In upcoming days, कोरोना वगैरह ख़त्म हुआ, I'm just gonna make a short video about named as Dream, जहाँ पर सब मेरे बारे में आप लोगों को पता चलेगा. हम एंड करते हैं. Make sure like, Peace subscribe, out. also check him out. Steam profile link in the description. This video was sponsored by Player One Coffee Lab. Use the link in the description. अच्छा मेरी भी स्टीम लिंक दे देना भाई, मुझे भी ऐड कर लो. हमारी दे रहे हैं. और ये जो Nvidia का स्लाइड घूम रहा है ये स्पॉन्सर्ड नहीं है. I'm telling you, Nvidia is not sponsored. Just telling what hardware I use. Later on कोई अगर स्पॉन्सर करना चाहे, you guys can email me on road.duster66@gmail.com. ये भी मेंशन कर दूंगा. You guys can follow my Instagram. See you guys in the next one. Until then, Allah Hafiz.